to celebrate 2024, we are very grateful to His Holiness Shriman Madhava Gaureshwar Vaishwacharya Jai Jai Shri Abhishek Goswami Ji. Pranam Swami Ji. Hari Bol. He is the 38th generation of the lineage of Goswami Kul of Sri Radharaman Devi Ji. He is a celebrated speaker and presenter of Vedic wisdom and truth. Jai Jai Shri is specially known for disclosing the impart of our beautiful scriptures like Srimad Bhagavatam, Gita, Ramayana, Mahabharata, Upanishads and Vedas. He relates and decodes stories from the present management life situations in order to help his followers around the world to deal with real life challenges. He is charismatic young spiritual guru who lives in Vrindavan but continuously travels to raise consciousness and inspire people towards enriching their lives. His unique style is full of enthusiasm and vigor and is fluent in English, Hindi and Sanskrit. He is a mindful practitioner and motivational speaker. Today, he will be unveiling the mystical journey of Mirabai. Thank you. Radhe Radhe. Swasti Shri Radha Ramano Vijayate. Shri Ganeshaya Namaha. Shri Saraswatyai Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. Namo Bhagavate Vasudevaya. Lambodaram Paramasundaram Kadantam Raktambaram Trinenam Paramam Pavitram Udya Divakar Karojvala Kayakantam Vigneshwaram Sakla Vignaharam Namami Satchidananda Rupaya Vishwotapatyadihe Tave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Namaha. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye. Barha Pidam Natwara Vapuhu Karniyo Karnikaram Vibhradvas Kanaka Kapisham Vajayantim Chamalam Randhrana Veno Radhar Sudhaya Urayan Gopa Vrindai Vrindaranyam Swapadaramanam Pravishda Gita Kirti Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranat Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Jai Jai Shri Radhe. Bolo Shri Radha Raman Lal ki Jai. चार भुजा नाथ की जय. श्री छोगाला छैल की जय.
श्री गिरधर गोपाल की जय। जय जय श्री राधे। जैसे आनंद किसी श्रवण करने वाले को एक भीतर उत्सुकता पैदा करता है, तो आप समझिए उससे आनंद ज़्यादा जो वक्ता है उसको उस अनुभूति के आभास से आनंद प्राप्त होता है कि मुझे किसकी कथा और किसकी चर्चा करने का अवसर मिला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने होस्ट किया ये इवेंट। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं यहाँ इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम होते हैं एंड अलका जलान फाउंडेशन को, लेकिन इसकी सूत्रधार कौन रही हैं? मुकुल जी। और ये सब व्यवस्था में कब आया है? मतलब थैंक गॉड दैट वी कुड मीट। देयर आर सो मेनी फेसेस आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, but we all met, on the screens through YouTube channels. And last time we spoke on Meera for 31 days. तो हमसे आज कल जब कोई मिलने आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई 31 डेज को 6 आवर्स में कैसे करेंगे? तो मैंने कहा देखिए उस समय हमने बहुत सारे मसाले मीरा के प्रवचनों में डाले, अब वो आपको बना बनाया हलवा तैयार करके देंगे, सब चीज़ एक साथ मिला कर देंगे। और 14 जनवरी जो है उत्तरायण का दिवस है, आप सबको बधाई है। ब्रज के सारे मंदिरों में खिचड़ी उत्सव चल रहा है। तो खिचड़ी का क्या मतलब है? तो अब जो 3 दिवस आप यहाँ पाएंगे, हमसे एक बार किसी ने कहा कि व्रज में जो खिचड़ी महोत्सव होता है उस पर भी एक बार बोलिए। तो आई स्पोक 3 डेज ऑन खिचड़ी महोत्सव। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की दाल का रूप धारण करते हैं, और प्रिया जी हमारी चावल बन जाती हैं, और सारी गोपियां अलग अलग अपने मसालों का रूप धारण कर कर जब प्रिया प्रीतम के संग मिलने की इच्छा प्रकट करती हैं तो भक्ति का ताप उनको पकाता है, और जो भक्त पाता है उसको खिचड़ी कहते हैं। तो आज तो विशेष खिचड़ी महोत्सव है। तो आप समझो खिचड़ी महोत्सव के दिन हमारी मीराबाई के जीवन में जिस प्रकार के भावों का, जिस प्रकार के प्रवाह का आनंद रहा है, वो वी थॉट दैट वील शेयर। अब आप समझिएगा कुछ तो बिल्कुल नए चेहरे हैं जिन्होंने हमें सुना ही नहीं है, और जो हमें बहुत समय तक झेल चुके हैं उनको ये पता है कि हम आई वुड नॉट बी एबल टू डाइव इनटू मीराबाई लाइक दिस। वो कहते हैं ना कि मीजान तैयार करना पड़ता है। और एक और समझने की बात है, जब गीता सुनते हैं तो गीता का असर हुआ है, ज्ञान आ गया है, उसके श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया है, लेकिन कॉन्शियसनेस तो अर्जुन जैसी नहीं हुई ना। जब अर्जुन जैसी कॉन्शियसनेस नहीं हुई तो गीता किस परिवेश में, किस अवस्था पे, युद्ध की भूमि पर, जहां बिल्कुल क्षण भर बाद बस उतरना ही है, उस थोड़े से पल में कितना कुछ ग्रहण किया होगा अर्जुन ने, कितनी उथल पुथल चली होगी, उससे जो सार गर्भित अर्थ निकला होगा, उसने, गीता ने अर्जुन को अर्जुन बनाया। उससे पहले अर्जुन कहां था? तो व्हाट आर द कंडीशंस हाउ वन हैज टू हियर मीराबाई? आप समझिए 22 दिन हो गए मुझे, तो मेरे जो 2 लालन हैं, माय 2 सन्स, उन्होंने मुझसे पूछा इतना बोल चुके हो आप, फिर भी वाई आर यू सिटिंग विद मीरा? हमारी सुरेखा जी ने हमसे कहा कि भाई आई नीड टू हैव अ स्मॉल वीडियो। मैंने इन्हें वीडियो भेजा, फिर मुझे लगा इट्स नॉट डूइंग जस्टिस। वाई?
मैं जो सुनाने आ रहा हूं वो 1 मिनट में क्या जस्टिस करेगा? हमने प्रेम की परिभाषा, प्रेम की तो हमने ना ऐसी की तैसी कर दी है शब्द की। तो कौन से प्रेम की चर्चा करूंगा? लाड़ की। अगर कोई मुंह से कहे कि मैं अपने राधा रमन जी ये क्या करूं, तो मैं कहूंगा मैं लाड़ करूं उन्हें। तो कैसे सुनना है कि आपके खुद के भीतर इतना लाड़ भरा पड़ा हो और उस लाड़ से ही आप मीरा सुन सकते हैं, बिना लाड़ के सुन ही नहीं सकते। क्योंकि उसको उसकी मैया लाडलपुत बुलाती थी और उसके लिए उसके लाडले श्री कृष्ण थे। तो आप समझिए कि जब व्रज से संपर्क होता है, मेरा मानना है, मैं इतने ब्रज के रसिक संतों के बीच में ही रहा हूं, व्रज में ही रहता हूं, तो प्रेम की चर्चा तो ब्रजवासी से ही सुननी चाहिए। तो आप समझो, जब मीरा की अवस्था आवे, जैसे आप समझो आप मंदिर जा रहे हो, वृंदावन आए और वृंदावन में आकर आपने प्रविष्ट किया किसी मंदिर में, भीड़ इतनी, धक्के, आपके कंधा से कंधा टकरा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रही है, आपके वस्त्रन की पता नहीं चल रही है, आपने अंदर आके ये भी सोचना चालू कर दिया आ क्यों गए, लेकिन वो अंदर से भीतर भगवान की के दर्शन की जो अवस्था थी वो इतनी विलक्षण थी कि आपको वो अंदर तक ले आई। उसके बाद आपने कहा अब पीछे नहीं मुड़ूंगी। तो परमात्मा को बताने का ढंग है, तुम कितने ही बोलते रहो तू मेरा तू मेरा तू मेरा, लेकिन परमात्मा पे अपने ढंग है ये बोलने के कि ना अब तू मेरा। और शास्त्रों में या हमारी इन कथाओं में जिस जिस तरीके से हमारे गोविंद ने, हमारे भगवान ने अपने भक्तों के लिए बोला कि तू मेरा, वो गजब का तरीका था। छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं, हम मरे चले जा रहे हैं, सांस नहीं ली जा रही है मंदिर में जाके, और उतनी भीड़ भाड़ के बीच में से कहीं थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम एकदम क्या कहते हैं, अरे वाह भगवान क्या किया तुमने, धक्के में भी मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया, तुम्हारी कृपा रही होगी। और उस थोड़ी सी भीड़ में भी ये बात थोड़ी छोटे लेवल की हो गई, थोड़ी और ऊपर अगर बढ़ जाए तो जैसे ही आप ऊपर के तल पर बढ़े, उस भीड़ में से जब आपको लगा कोई साधन नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कहीं से एक हाथ आ जाए और आपको अपनी ओर खींच ले, तो आप क्या कहते हो, ओहो उस पूरी भीड़ में मेरी दृष्टि भगवान की तरफ थी, पर आनंद की बात है कि भगवान की दृष्टि मुझ पर थी, उन्होंने मुझे उबार लिया। वो भगवान का तरीका था कहने का, योर प्रेजेंस हैज बीन एक्नॉलेज्ड, यू हैव कम इन। लेकिन ये बात भी थोड़ी छोटी है। कहता रहा, ध्रुव ने 6 महीने खड़े होकर तपस्या करी, अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप कर लिया। जब 6 महीने के बाद उस मंत्र को करते 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 करते, देखो हम भूल गए कनेक्ट, मंत्र जप कैसे किया जाता है। आप किसी वयोवृद्ध को, किसी बड़े को, किसी ज्ञानी को, किसी गुरुजन को बुलाते हो तो आप एक गाड़ी भेजते हो उनको लेकर आने के लिए, लेकिन जब भक्त भगवान को बुलाता है तो मंत्र भेजता है। और ऐसा मंत्र किया ध्रुव ने, ऐसे मंत्र भ्रमण करता हुआ पहले पृथ्वी का, पहले पूरे ब्रजमंडल का, ऊपर उठा, स्वर्गलोक गया, वैकुंठ गया, अरे साक्षात कैलाश पर्वत गया, ब्रह्मलोक गया, और जब भगवान के पास पहुंचा तो जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय रूपी मंत्र जाके हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। उसी समय बड़े बड़े पंखों के साथ उड़ता हुआ गरुड़ आकर भगवान के समीप खड़ा हुआ और उसने कहा, भगवान आज्ञा दीजिए। तो भगवान ने कहा गरुड़ से, गरुड़ आज तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरे भक्त ने मेरे लिए मंत्र रूपी गाड़ी भेजी है। आज मैं इस मंत्र के ऊपर बैठकर पृथ्वी लोक पे अपने ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। तो आप समझो कि कितना भी कोई कहता रहे, भगवान ने बताने के लिए कहा कि मैं तेरा, क्योंकि तूने मेरे पास मंत्र भेज दिया।
और जब भगवान नीचे आए तो आप समझते हो भगवान भक्त के मन में शिकायत भी है, क्लेश भी है, पीड़ा भी है। अगर वो उससे ना करेगा तो किससे करेगा? मीरा, अगर उस आनंद से श्रवण किया गया तो तुम्हें लगेगा तुम्हारे भीतर ही बैठी कोई है जो चर्चा करने को तत्पर हो गई है। अब भगवान श्री हरि उतरकर नीचे आए और सामने ध्रुव के खड़े हो गए तो ध्रुव ने भगवान से शिकायत रूप में कहा, 6 महीने से खड़ा हूं, आपको एक पल के लिए न लगा, आपको न लगा आपको उतर के आ जाना चाहिए? तो भगवान ने कहा, एक बात ध्रुव, अपनी ओर देख, तेरी इन आंखों के बीच में से जैसे ही तू मेरे लिए तड़प कर बिलख कर अपनी अश्रुधारा बहा रहा था, वो आंख से लेकर कपोलों के मार्ग से होते हुए मुख अपने होठों के अधरों के किनारों से होते हुए थोड़ी थकी पहुंचा था। वो गिरा भी नहीं था कि मैं वैकुंठ से तेरे लिए प्रकट हो गया। जितनी देर तुम्हारी स्याही इकट्ठी करने में समय लगता है, मैं उतनी देर में इकट्ठा हो जाता हूं, उतनी देर में उपस्थित हो जाता हूं। अब समझो तो क्या करना है? स्याही इकट्ठी करनी है, मीरा की चर्चा नहीं करनी है। कर ही कहां सकते हैं? एक और बात ध्यान की है, भक्त की तो कथा बोलने ही नहीं आया हूं, भक्ति ही बोलने आया हूं, जो साक्षात भक्ति है। मीरा भक्त नहीं है, गलत फहमी में भी न रहना, हो भी नहीं सकती है। वो साक्षात भक्ति है और उसके माध्यम से कृष्ण ने सोचा मैं ही आ जाऊं, तो उसने स्याही इकट्ठी करी, भगवान ने उसके भावों को लिख दिया। स्याही कौन सी है इस बार देखते हैं। ये 3 दिवस की श्रृंखला में आप कैसी स्याही इकट्ठी करते हो? मीरा के आंसू ही उसकी स्याही है। इस प्रेम के सरोवर में आइए सब संग चल पड़ते हैं। हमारी झाली जी यहां पर मेड़ता गांव में, देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं और कुछ छूट भी जाए मेरे से तो आप समझना, छूट गया तो छूट गया, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो एसेंस होगा वो आपके हृदय में स्थापित करने की चेष्टा करूंगा। हमारी मेड़ता के, राजस्थान के मेड़ता प्रांत में, कोई कहता है कुड़की में, कोई कहता है कहीं और, लेकिन जो वास्तविक तथ्यगत है, मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ। जो दूदासर थे, दूदासर के 5 पुत्र थे, वीरमदेव, रायमल, रायसल, रतन सिंह और साक्षात पंचायण। चौथे पुत्र की बेटी हमारी मीराबाई थी। जब सगर्भा हुई झाली जी, जिस समय वो सगर्भा हुई तो जो बाबा थे, घर के ज्येष्ठ थे, उन्होंने ये प्रयत्न किया कि जब भी कहीं कोई राजस्थान में, पुष्कर में, कहीं पर कोई संत आते तो ऐसा होता ही नहीं कि वो मेड़ता नहीं पहुंचे, और जब वो मेड़ता में प्रविष्ट करते, उन संतन को बुलाते और अपने यहाँ पर विराजमान करते। अब कोई ब्रज के रसिक संत आए थे, कथा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा बिल्कुल प्रसव काल निकट है, हमारी बहू के कोई ऐसा संतान हो, क्यों ना हम उसे भागवत सुना दें। तो आप समझना, जैसे घर में आजकल हम क्या कोशिश करते, दिस इज अगेन अ न्यू वे दैट all of you, when you have your daughter-in-laws about to deliver, what do? You want them to hear the best of the stuff. कि भाई रामायण सुनो या कुछ और सुनो, तो पुरानी परंपरा है। वो बैठ जाते और बैठकर कथा सुना रहे थे। बार बार झाली के मन में प्रश्न उठते, उन प्रश्नों को ले लेकर वो पुछवाती, भिजवाती, और जो कथा कर रहे थे वो बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देते। लेकिन जब दशम स्कंध आया, जो भगवान कृष्ण की लीला का विवरण चालू हुआ, तो अंदर से एक भी प्रश्न ना आया। जब एक भी प्रश्न आया तो उन्होंने पूछा कथाकार ने कि अंदर से आज प्रश्न के उत्तर, प्रश्न क्यों नहीं आ रहे हैं?
तो उन्होंने कहा अब प्रश्न वाली बात नहीं है, आनंद इतना बढ़ गया है कि उस आनंद को ही मैं रम रही हूं अंदर, गुन रही हूं अंदर। और उसके पश्चात जब कथा विश्राम हुई और कुछ समय के पश्चात मीराबाई का जन्म हुआ। अब जब मीराबाई का जन्म हुआ तो भाई राजस्थान में हमारे भी घरों में हम किसी ज्योतिष आदि को बुलाकर उसके सारे जन्माक्षर देखते हैं और दूदासाने, देखिए कोई गढ़ता है किसी को, आपका जन्म तो हो गया है लेकिन आपके परिवार में ही कोई होता है जो आपको गढ़ता है, जो तराशता है। तो दूदासा ने जब देखा कि मेरी पोती के जन्माक्षर में लिखा है कि ये जहां जाएगी, ये जिस कुल में जन्मी है उस कुल में कोई ऐसा उद्भट योद्धा नहीं होगा जिसकी वजह से वो कुल जाना जाए, लेकिन ये जिस कुल में जन्मी और जिस कुल में ब्याह होगा वो दोनों कुल अजर और अमर हो जाएंगे। ये साक्षात कहीं की विरहणी है, ये कहीं से छूट गई थी और इसका जन्म आपके घर में हुआ है। उस ज्योतिषाचार्य ने कहा गंगा आई है, नहा लेना। तो आप समझो क्या कहूं, गंगा ही आई है। मैं इस पार से सुना रहा हूं, आप उस पार से सुन रहे हो और बीच में गंगा बह रही है। और गंगा में अपना कुछ अर्पण जरूर करना, अपना आवश्यक है, क्योंकि आप समझना हम कुछ भी बाहर की चीज अर्पण कर सकते हैं, पुष्प हमारा नहीं, कोई फल हमारा नहीं, कोई मेवा हमारी नहीं, लेकिन अगर अर्पण किया जा सकता है तो केवल आपके अपने अश्रु अर्पण किए जा सकते हैं। जैसे ही तैयारी हुई, यहां धीरे धीरे मीरा का पालन पोषण प्रारंभ हुआ, वो जो प्रकार का आनंद देती। देखो कभी कभी विस्तारित बोलने की, अब आप समझना मेरे दिमाग में तो विस्तारित वाली मीरा है और अब समय के अभाव को देखते हुए तो मैं वो बात बोलना चाहता हूं जो आपके हृदय में जाकर मेरा कन्हैया बैठ जाए। जैसे ही थोड़ी थोड़ी मीरा बढ़ने लगी तो मात्र 3 या 4 वर्ष की थी, कोई एक बाबा आए और जब वो बाबा आए, उन बाबा ने आकर अपनी गुदड़ी में से, जैसे मेड़ता में संत पधारते, ये बाबा उस महल में मेड़ता में रहे और कोने में जैसे बच्चों को बड़ा आनंद आता है, उसने छोटी सी जगह से जाके देखा कि बड़े सुंदर बाबा हैं। उन्होंने अपनी गुदड़ी में से एक ठाकुर का विग्रह निकालकर सामने रखा। मीरा 4 वर्ष की थी। जैसे ही गुदड़ी में से सामने रखा, छोटा सा चौकी थी, उस पर भगवान को रखा और अपनी ही उस गुदड़ी में से कुछ निकालने लगे। लो ठाकुर पाओ। मीरा पे रहा न गया, वो पीछे से दौड़ती हुई आई। ये कौन है? अरे ये तो भगवान है। क्या ये बोलते भी हैं? आप समझना, इतनी निश्चलता तो केवल बालक बुद्धि में हो सकती है, या जो बालक वत हो गया हो। तो उन बाबा ने बैठकर मीरा को बताया, अरे ये साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह है। तो उसने कहा, ये तो मेरे 4 भुजानाथ जैसे नहीं है, ये तो छौगाला छैल जैसे नहीं है, ये कैसे हैं? हमारे एकलिंग नाथ जी तो शिव जी हैं, जो वहां के इष्ट देव हैं। ये कैसे हैं? ये कैसे खड़े हैं? ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये ऐसे ही मुस्कुराते हैं। उन बाबा ने जो परिचय देना था छोटी सी मीरा को, जब कच्ची घड़ा होता है ना, आप उस पर कोई लकीर मारिए वो जिंदगी भर के लिए रह जाती है। वो कच्ची लकीर थी जो उन साधु ने परिचय दिया। तो उसने छूटते ही बोला, क्या इतने प्यारे लग रहे हैं मुझे आपके ठाकुर, क्या आप मुझे बख्श देंगे? तो उन्होंने कहा, बेटी भगवान थोड़ी ना किसी को दिए जाते हैं, ये तो मेरे भगवान हैं। और जब कहा कि मेरे भगवान हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो मचलने लग गई, उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई, क्योंकि जो मांगती थी सो मिलता था। आज किसी ने ना कह दिया और जैसे ही ना कहा, उस ना को सुनते ही उसके आंखों से बड़े बड़े टिमटिमाते से आंसू उतरे। बाबा घबरा गया, राजकुमारी है, इतने बड़े गढ़ में आया हूं,
कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे ठाकुर को ले ले। उन्होंने गूदड़ी में लपेटे और गूदड़ी में लपेट कर लेकर अपने उस महल से कहीं जाकर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे और जाकर पुनः अपने ठाकुर को लेकर उन्होंने चौकी पर बैठाया तो जैसे लगा जैसे ठाकुर का मन कर गया हो कि आज तक बोले नहीं थे उस बाबा से, उस साधु से कभी कोई वार्तालाप ना हुआ था, लेकिन आज उनका मन कराया कि अंदर से निकलकर उससे बात करूं, वार्तालाप करूं। उसने कहा स्वीकार कर ली तेरी सेवा मैंने, तेरी सेवा स्वीकार कर ली मैंने। पता है तेरे पास आया ही क्यों था? इसलिए कि तू एक दिवस मीरा के पास मुझे ले जाएगा, और जब तू मीरा के पास मुझे ले जाएगा तब बस तेरी यात्रा हो गई, तेरी सारी पूजा स्वीकार कर ली मैंने। एक काम कर, अब मुझे लेकर जाकर मीरा के पास छोड़ा। जैसे ही सुना कि मीरा के पास छोड़ा, वो नाचने लगा। अरे तुम जिंदगी भर एक मूर्ति के पास पड़े रहो, पीतल की मूर्ति हो, पाषाण की मूर्ति हो, उससे तुम्हारा संबंध ना हो, तुम्हें पता ना हो तुम्हारी प्रार्थना उस तक पहुंचती हो कि न पहुंचती हो, लेकिन उस समय पर उस मूर्ति में से जब ध्वनि, उसमें से शब्द सुनाई दिए कि बस तेरी सेवा स्वीकार हो गई, ये आखिरी जन्म है तेरा, तू मुझे मीरा को दे आ। वो भागा और ले जाकर जब उसने महल के दरवाजों पर बड़े कड़े लगे थे, उन कड़ों को बार बार बजाया और दरवाजा खुला तो सामने की अट्टालिका के ऊपर मीरा खड़ी थी। उसे पता था जैसे कि मेरे ठाकुर आने वाले। देखिए आपको एक बात बताऊं, मैंने आपसे क्या कहा, पका हुआ आया हूं ब्रज से। सुनना कैसे है कथा को, 3 दिन सुनेंगे कैसे? अगर आप कानों से सुनेंगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अगर आप आंखों से सुनेंगे तो मैं बिल्कुल ऐसे ही सुनाऊंगा जैसे आपके सामने लीला घट रही हो, जैसे आपको लगे कि आप उसमें सम्मिलित थे, तुम मधुमक्खी बन के भी उसमें सम्मिलित हो गए, तो तुम समझना उस लीला में तुम्हारा प्रवेश हो गया। जैसे ही उस दरवाजे को खोला, सामने मीरा थी, नीचे भागी, उसके दूदासा भागे, उसके ताताश्री पिता भागे, उसके काकोसा भागे, सब पीछे पीछे भागे, उसकी मैया भागी और उसने छूटते ही कहा मेरे भगवान आ गए। जब कहा मेरे भगवान आ गए तो उन्होंने कहा ऐसा संभव कैसे है कि कोई साधु अपने भगवान दे आए? वो साधु बैठे, आंखों से अश्रुधारा भरे थे। तो उन्होंने कहा जिंदगी भर मैं उनको खबाता रहा, उन्होंने खाया नहीं। जिंदगी भर मैं वार्तालाप करता रहा, मुझे लगा मैं ही बोल रहा हूं, उधर कोई सुनता नहीं है। लेकिन मीरा से मिलने के पश्चात उन्होंने मुझसे कहा तेरी सेवा स्वीकार हो गई, आजा मुझे दे आ उसको, तुम्हें बख्शने आ गया। और जैसे ही मैंने सामने उनके अर्पण किया, मीरा ने अपनी छाती से लगाया और भीतर की तरफ दौड़ पड़ी। ये 525वां वर्ष नहीं है, ये 5250वां वर्ष है। 525वां तो मीरा का इस युग में जन्मोत्सव है, लेकिन 5250वां उसका प्रेम की एनिवर्सरी है, उसके लाड़ की एनिवर्सरी है, उसकी प्रतीक्षा पूरी हुई है, उसकी एनिवर्सरी है। और जैसे ही उन विग्रह को ले जाकर अंदर धरा, बैठ गई। देखो मां, देखो तुमसे कहा था ना मैंने, मेरे ठाकुर आ गए, मेरे ठाकुर आ गए। यहां पर जो आनंद की सीमा रही वो विलक्षण थी। इस सीमा के आनंद को लेकर जब वो बैठी तो वो दौड़कर अपने अपने पिता के पास, अपनी भाबू हुकुम के पास, अपनी मां को भाबू हुकुम बोलती थी, सारी काकी सा को लेकर अपने कक्ष में आ गई। देखो कैसे हैं कैसे हैं। तो दूदासा ने कहा अब एक बात बताओ, इनके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? अरे चांदी की चौकी कर दो, इनके सारे चांदी के बर्तन कर दो, ये कर दो। बैठकर दूदासा कह रहे और बोल क्या चाहिए, और बता कैसा चाहिए।
ये करते करते आप समझना उसने अपने जीवन को उस 4 वर्ष की अवस्था से उधर न्यौछावर करना प्रारंभ किया। और एक और संत आए, जब मेड़ता पहुंचे तो सामने उन्होंने दिखा, अरे वाह बड़ा सुंदर विग्रह है। एक छोटी सी बात है, आप विग्रह को निहारते हो, एक विग्रह ने अगर आपको निहारा तो क्या होगा। आपने मधुराष्टकम सुना है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। छोटी सी बात है कि कब अधर शब्द का अर्थ क्या हुआ। अधर शब्द का अर्थ हुआ कि भाई होठ, कौन सा वाला होठ। हमारे ब्रज की जो श्रृंगार रस की पद्धति है उसमें नीचे वाले होठ को अधर बोला गया, ऊपर वाले को नहीं बोला गया। क्योंकि अगर हमारो कन्हैया चूसेगो भी तो नीचे वालों चूसेगो ना, नीचे वालों चूसने में इतना आनंददायक है। और बापे से जब लार निकलेगी कन्हैया के मुंह की तो वो जाके नीचे वाले होठ पे टिक जाएगी। और सूर्य की अगर कोई रश्मि आकर उनके अधरों के पल्लवों पर बैठ जाए तो ऐसा लगेगा जैसे काऊ ने मर दियो हीरा से। और जब वो चाशनी हल्की सी होठ के मार्ग से निकल कर नीचे आएगी, थोड़ी सी नीचे उतरेगी, तो ठोड़ी पे आके जो भगवान की लार छोटा सा हीरे की भांति बिंदु बन जाएगा। दौड़कर एक गोपी जाएगी और अपनी उंगलियां में उस लार को लेकर चूसेगी तो वो कह पाएगी अधरम मधुरम। वो गोपी कह पाएगी अधरम मधुरम, क्योंकि उसने भगवान के अधर का रस पान कर लिया। आप पहुंच जाए मंदिर और आपको ऐसे दर्शन हो कि आपकी हिलकी भर जाए और आप रोते चले जाओ, तो समझना आपने धैर्य खो दिया। उसको कहते हैं अधर। लेकिन अगर ये धैर्य भी थोड़ा छोटा है, अगर आप मंदिर में गए और आपको पता है आप नहीं देख पाए लेकिन गोविंद को आपने अपने आप को देखते देख लिया, तो जो उस समय अधर आप होंगे, जो धैर्य आप खो देंगे, वो विलक्षण होगा। यहां पर जब मीराबाई ने लीला करी, अपनी एक एक चीज को दिखाया, सब किया, यहां उसके जीवन में बड़े सारे परिवर्तन होने लगे। एक संत आए और संत ने आकर एक दिन पूरी कथा सुनाई। कथा सुनाकर उन्होंने बड़े आनंद से एक दिन गिरिराज धरण की लीला सुनाई। देखो, तैयार रहना, मैं आपको बता रहा हूं सुनने का तरीका क्या है। अगर उस भाव को दर्शन कर पाए तो बड़ा विलक्षण होगा, मेरा आना सार्थक होगा। नहीं तो आप बताओ, कहानी कथा कहकर तो कोई भी चला जाएगा। जब उन्होंने गिरिराज जी की लीला सुनाई तो मीरा बैठकर अपने दूदासा के बार बार जांघों पर कौनी रखकर बैठकर यूं सुन रही थी। और जब गिरिराज जी की लीला चालू हुई तो खड़ी हो गई। और जब खड़ी हुई तो खड़ी होते होते एक दिन उसे मूर्छा आ गई। मूर्छा आई तो सब जितने थे सब व्याकुल हो गए कि मीरा को आज कथा सुनकर मूर्छा आई। जल डाला उसके मुंह पर, सब किया, लेकिन इतनी आसानी से वो होश में ना आई। अरे ये कृष्ण काल की गोपी थी और इस गोपी का नाम था माधवी। ये ब्रज की नाई। अब देखो, ब्रज की कथा होगी तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, मैं ब्रज भाषा बोलूंगा। मैंने सुरेखा जी से कही कि आपने सारे क्रिएटिव्स अंग्रेजी में बना दिए, बोल तो मैं हिंदी में रहूं। क्योंकि इस कथा को, मतलब इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इट इन इंग्लिश, वी कैन, लेकिन जो रस आएगा ना, वो जो चुचाएगा, जो टपकेगा, वो वही वाली भाषा में आएगा जहां मैं आपको सुना रहा हूं। तो जैसे ही हमारी मीराबाई ने कथा सुनी तो पूरी की पूरी पुरानी स्मृति उसके जीवन में जग गई। वो पुरानी स्मृति क्या थी कि उसने अपने ही आप को उस गिरिराज धरण में, भगवान ने बाएं पाक की हाथ की छोटी सी उंगलियां पे गिरिराज धारण कर रखा हो, वाके नीचे वो खड़ी हुई है। उसने वो स्वरूप का साक्षात दर्शन कर लिया। जब उसने साक्षात दर्शन किया तो उसकी मूर्छा आ गई क्योंकि संबंध बहुत पुराना था। परतें खुलने लगी, उसकी छटपटाहट खुलने लगी, उसकी व्याकुलता पागल में
पन में परिणित होने लगी, जैसे कोई व्याकुल होता है, मिलने की उत्सुकता बढ़ती है। वो इतनी विलक्षण तरीके से होने लगी कि जब पुरानी स्मृति हुई तो उसने क्या देखा कि उसका गौना होने को जा रहा है, और दूसरे गांव की, ब्रज की नाई, दूसरे गांव की ही, और हमारे कृष्ण का एक सखा जिसका नाम था सुंदर, वो अपनी पत्नी को लिवाने के लिए दूसरे गांव गया अपनी बैलगाड़ी लेके। मैया जा माधवी को सजा रही, और इतनी सुंदर बताई जाती है शास्त्र में माधवी की, जब माधवी को देखती तो कहती, मेरी प्यारी सी बेटी, एक काम करियो, तू ब्रज जा रही है, ब्रज जाके वहां एक सबसे शैतान छोरा है, वो शैतान छोरा का नाम है कन्हैया। कोई बाय कनुआ कहे, कोई गोविंद कहे, कोई गोपाल कहे, कुछ भी करियो, पर अपने आप को बाय देखने मत दइयो। तो उसे कहती, क्यों मैया, तू ऐसा क्यों कह रही हो? तो कह रही, मैं तो बता रही हूं, जा स्त्री ने बाय देखो, वो पागल है गई है। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी बेटी भी पागल हो जाए, इसलिए तो उसने देखा। तो उस समय पर भैया आपके पास दूसरे रीजन होंगे, अब व्हाट्सएप है रोज याद दिलाने के ताई, लेकिन वास्तव में वो सब तो होना हो। तो बा ने अपनी छोरी के में एक सुपारी लेके बाके आंचल में पीछे गांठ बांध दी, और गांठ बांध के जब जब वो पल्ला लेगी तो वो सुपारी उसके पीछे पीठ पे टकराएगी, और जब टकराएगी तो उसे याद आएगी मेरी मैया ने कौन सी प्रतिज्ञा ली। अब सुंदर आयो भयो तो सुंदर बैठ गयो बैलगाड़ी में। जब सुंदर बैलगाड़ी में बैठा और लेकर चल पड़ा मीराबाई उसको, माधवी को, तो उसके चलने के साथ साथ वो बार बार कोई आवाज होए तो अपने पति की कौनी मार के बोले, जे कौन है? मैंने आपसे क्या कही, सुनने में मजा नहीं है, देखने में मजा है। वो वन संपदा हो, जब आप ब्रज में प्रवेश कर रहे हो, रज उड़ रही हो, गैया इधर से उधर विचरण कर रही हो, उन सबके बीच में गोप बनकर कृष्ण जा रहे हो, और उसी समय ब्रज की सीमा में प्रविष्ट हुआ हो हमारे सुंदर का अपनी नई नवोड़ा दुल्हन के संग, और कन्हैया ने कही, ओ सुंदर, ले आयो भाभी को, मैं अभी आ रहा हूं। और अपने बछियान को दूसरन के हाथ में थमाए के दौड़ते भक्त कूदते भय सीधे उस बैलगाड़ी में बैठकर कहते, ओ भाभी चलो अपनो मोहड़ो दिखाओ। और जैसे ही कहा कि अपना मोहड़ो दिखाओ तो उन्होंने फिर कौनी मारी कि जे कौन? अरे यही तो मेरो सखा है, जाको नाम है कन्हैया। अरे मां ने कसके पकड़ लियो, मां ने इतनी कसके पकड़ लिया अपना घूंघट, और उसने कन्हैया के हाथों में आकर, कन्हैया ने पकड़ लिए बाके हाथ घूंघट से, खूब उसके घूंघट को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन किसी तरीके से माधवी ने अपनी मां की प्रतिज्ञा का मान रखा, लेकिन कन्हैया को अपना चेहरा न दिखाया। और जब चेहरा न दिखाया तो उन्होंने, कोई बात ना है, अरे नई भाभी सबरी शर्मा में, और बाद में तो शर्म मैं ही उतारूं सबकी, तो कोई बात ना है। सांझ के समय जब पूरे गांव के साथ मुंह दिखाई की रस्म है रही, तो हमारा कन्हैया फिर पहुंच गया, और पहुंच के बाने जैसे ही वज्रासन में बैठे अपनी भाभी के सामने, हमारा कन्हैया वज्रासन में बैठ के बोले, भाभी एक बार अपना मोहड़ो दिखाओ। भाई मुंह दिखाइए, सबको दिखा रही है, कोई आ रही है देखियो, अरे बड़ी सुंदर बहू है, सुंदर तेरी तो, सुंदर तू भी सुंदर, तेरी बहू भी सुंदर। तो कन्हैया ने कि मैं भी तो देखूं कैसी है, लेकिन बाने टस से मस नहीं हुई, और उसने कन्हैया को दर्शन नहीं दिए तो नहीं दिए। कृष्ण खड़े हुए और उससे बोले, अब तू तरसेगी, तू चाहेगी भी तो मेरे समीप ना आ पाएगी। फर्क नहीं पड़ता अगर कोई और बोलता तो, लेकिन कृष्ण ने बोला, उसे भी लगा, कह रहे तू तरसेगी, मैं क्यों तरसूंगी, मेरी मां ने कहा था प्रतिज्ञा ले ले, तो मैंने ले ली। और वहां से सब उठ गया। लेकिन जैसे जैसे उसने व्रज की हवा देखी, व्रज में गोपियों का भाव देखा, व्रज में गोपियों का समर्पण देखा, ब्रज में उसने देखा गीत देखे,
धीरे धीरे उसका आकर्षण बढ़ने लगा। वो पीछे 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 जाती, लेकिन कृष्ण उसे न दिखते, किसी लीला में उसे प्रवेश न मिलता। उसने सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ न हुआ, और उसकी बार बार मन में इच्छा उठती, माँ ने मेरी प्रतिज्ञा दी है, अरे 7 वर्ष के कन्हैया हुए, गिरिराज की लीला हुई, पूरा ब्रजमंडल कृष्ण को निहार रहा था। केवल एक स्त्री थी जो पीठ करके खड़ी थी। पूरा ब्रजमंडल, अरे कोई गैया, कोई कुकुर, कोई मोर, कोई तोता, कोई ऐसा नहीं था जो कृष्ण को ना निहार रहा हो। और सोचो, उन हजारों लाखों में एक ऐसी गोपी थी जो पीठ करके खड़ी थी। और उसके पास जाकर एक गोपी ने कहा, री बावरी छोड़। उसने नीचे से जाके उसकी पोटली खोली, उसमें जो सुपारी थी उसको फेंका। अरे तेरी प्रतिज्ञा मैंने तोड़ दी, एक बार देख, ये स्वरूप तू कभी जिंदगी में न देख पाई। वो हल्की सी मुड़ी, उसने एक ओट से, घूंघट के ओट से कृष्ण की ओर निहारा। वो पल मीरा माधवी को कभी कभी भुला न सके, ऐसा था। हाथ ढीला पड़ गया, आंचल गिर पड़ा, वस्त्रों का ध्यान न रहा, वो धूल धूसरित हो गए। 7 दिवस तक वो अपलक दृष्टि से कृष्ण को निहारती रही, लेकिन कृष्ण ने उसकी ओर न देखा। वो व्याकुल हो गई, वो पागल हो गई, वो मूर्छित हो गई। जब वो मूर्छित हुई तो उसे उठाया, और जिसने उठाया उस गोपी का नाम चंपक लता था। उस गोपी ने जब उठाया, अपने गोदी पे धरा, तो उसने कहा, तू अपनी भक्ति की डोर को मत ढीली होने देना, जो भाव उठा है उसको कर। लेकिन कृष्ण ने उसको सामीप्य प्रदान नहीं किया। हर लीला में श्री राधा रानी के संग, ललिता विशाखा के संग वो सब जगह जाती रही। अरे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ, तो सूर्य ग्रहण में जब सारे ब्रजवासी पहुंचे तो उसमें माधवी भी थी। जब भगवान दौड़े हमारी राधा रानी के चरणों के अंदर शीश नवाने के लिए, तो जो जलन करती थी श्री राधा रानी के नाम से रुक्मणी भी, उस समय भी माधवी कोने में खड़ी थी। क्योंकि जिस समय इतने वर्षों के बाद ब्रजवासी मिले, भगवान श्री कृष्ण से दर्शन हुए, अपने मैया बाबा के चरण को जांगन पर रख के उनके नीचे तलवन में अपने हाथ फेर रहे थे कन्हैया, उस समय पर जब कहा वो बावरी भी आई है, कृष्ण दौड़े और जाकर अपनी राधा रानी से बहुत समय के काल के बाद उनकी भेंट हुई। जब भेंट हुई तो उस समय भी वो विराजमान थी। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र तक आ गए हो, समस्त ब्रज को मैं अपने साथ द्वारका लेकर जाऊंगा। जब द्वारका लेकर पहुंचे और ये माधवी जब रुक्मणी जी के महल में प्रविष्ट करती है, तो इसके मन के अंदर भाव उठता है, अगर मैं कृष्ण की पटरानी बन जाऊं, अगर मैं कृष्ण की पत्नी होती तो मेरा भी ऐसा महल होता। और जो उसने प्राण त्यागे वो उस आस में त्यागे कि मैं कृष्ण की पत्नी होती। काश मैं कृष्ण की पत्नी होती, काश मैंने अपनी मां की उस प्रतिज्ञा को इतना मान न दिया होता, तो आज मैं कृष्ण की होती। ये करते करते उसके प्राण वहीं न्यौछावर हो गए। जब हुए तो जो सब कुछ उसका संस्कार हुआ वो द्वारका में हुआ। वो छटपटाहट कितनी अद्भुत रही होगी, वो कितनी विलक्षण रही होगी। उस छटपटाहट के साथ जब कहते जिस समय उसका प्रयाण का समय निकट था, वो अपने प्राणों को छोड़ना नहीं चाहती थी, कृष्ण को स्वीकार करना चाहती थी। तो कृष्ण ने उससे अंतिम पल पर कहा, इस जन्म में तू मुझे न मिल पाई, पर कलयुग में माधवी तू पुनः जन्म लेगी, और कलयुग में तू मेरा जो कार्य है वो कार्य करने के लिए मीरा के रूप में आवेगी। तो वहां खड़ी हुई 8 पटरानियों ने अपनी एक एक दासी को दासत्व प्रदान कर कर उनसे कहा, ये 8 भी मीरा के काल में राजस्थान में जन्म लेंगी और ये केवल मीरा की सेवा करेंगी। मीरा को उठाकर जैसे जैसे समय के अनुसार होगा लेकर आपके पास पुनः कलिकाल में द्वारका तक पहुंचाएंगी।
तो जो आप सुनते हैं कि जब ये लीला घटी तो इस घटने के पश्चात ये जो भाव की अवस्था बढ़ने लगी, दूधा जी को इसके विषय में कुछ खास पता ना था, क्योंकि जो भी आता वो ये कहता कोई भटकी हुई गोपी है, कोई किसी काल में भटक गई होगी, उसका जन्म अब इस रूप में हो गया है। एक बार मीरा के पिता और मां अपने कक्ष में बैठे थे। पिता ने कहा लाडन पूत के तो दर्शन ही ना हुए। तो उन्होंने कहा अरे आजकल वो अपनी उस मूर्ति को लेकर ना पूरे समय ही उसी में ही लगी रहती है। उन्होंने कहा एक बार जाओ ना, कितना समय हो गया हमने अपनी प्यारी लाडली बेटी को छाती से भी न लगाया। तो यहां पर झाली जी पहुंच जाती हैं मीरा के उस कक्ष में, जहां वो छोटे से स्थान में अपने कन्हैया को अपने बाह पर सर रखकर स्वयं उनको जकड़ कर सुला रही थी। इतनी समझदार थी उस उम्र पे भी कि जब मां ने माथे पर हाथ धरा और आंख खुली तो उसने कहा आवाज नहीं, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, तेरा मन नहीं करता इनको छोड़कर उनसे मिलने का? तो उसने कहा आती हूं, पर देख रही हो ना ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे ठाकुर यहीं विराजमान है। तो अभी तक भगवान भगवान बोलती रही। अरे तूने अपने भगवान का कोई नाम रखा है? तो यहां पर जब बैठी और अपने पिता की गोदी में बैठी तो पिता ने छूटते ही उससे कहा बेटी तेरा मन नहीं करता तू अपने पिता के पास आए? अब क्या बताऊं, हमारे भगवान आए हैं ना। अरे हमने सुना है किसी संत ने तुम्हें बख्शे, तुम पूरा दिन उनके साथ। अरे मैं इतना सुंदर सजाने लग गई हूं, मैं अब त्रुटियां निकालती हूं कि मेरी दासियां वो श्रृंगार मेरे ऊपर क्यों नहीं करती थी जो मैं अपने कन्हैया के लिए करती हूं। अच्छा आपने बहुत अच्छा किया हमें बुला लिया, हमें इतना सारा सामान चाहिए। आपको पता है हमारे ठाकुर को सजाने के लिए मुझे अब मुकुट चाहिए बड़े सुंदर। अरे बताओ क्या क्या चाहिए। और चटपट छोटी सी मीरा ने इतनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट अपने पिता के सामने थाम दी कि ये आप मेरे लिए व्यवस्था कर दो। और फिर उसके बाद छटपटाते हुए पिता को छोड़कर वापस कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे जाते ही जैसे ही रजाई उठाई, रजाई उठाते ही बोली ज्यादा देर तो नहीं लगाई। आप समझना भक्ति का संबंध भगवान को भगवान मानने में नहीं है। जिस किसी ने भी भगवान को भगवान माना उसमें बहुत दूरी रही, जिसने एक संबंध बनाया। अब आज डाकोर जाने का प्रयोजन दूधासा ने किया। डाकोर हमारे रणछोड़ लाल गुजरात में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो मीरा ने कहा कि हम भी चलें, बड़े मजे से सब चल पड़े और बीच में जाकर कहीं तंबू अंबू गाड़ गुड़ दिए कि आज रात्रि का विश्राम यहीं किया जाएगा। तो जहां कहीं भी मीरा के दूधासा को कोई योगी, कोई साधु, कोई संत मिलता तो वो कोशिश करते कि उनको अपने पास बुलाएं, उनसे कुछ सीखें। तो योगी निवृत्तिनाथ के दर्शन उस पड़ाव स्थल पर हुए। एक योगी बैठे थे बिल्कुल मेरुदंड को साध कर, और उस अवस्था में हमारी मीराबाई ने जब उनको देखा पहली बार तो उसने कहा ये कैसे बैठे हैं? आप देखो न तो ये बोल रहे हैं, न इनके पास कोई माला है, न इनके बस चेहरे पे मुस्कान बहुत है। तो जैसे ही इन लोगों के आने की आहट हुई और योगी की जो ध्यान की अवस्था थी वो छूटी, तो जाते ही मीराबाई ने उन योगी निवृत्तनाथ जी से पूछा आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा बेटी मैं भजन कर रहा था। ये भजन कैसा होता है जिसमें कोई शब्द नहीं होते? ये भजन कैसा होता है जिसमें आपके पास कोई साधन नहीं है? देखो समझने की बात है, पूजा और सेवा में अंतर क्या है। पूजा में आपको सामग्री चाहिए, पूजा में आपको अक्षत पुष्प आदि सब चीजें चाहिए, और सेवा में केवल आप ही सामग्री हो। सेवा में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटी ये योगियों का भजन है, आप ये भजन मुझे सिखाएंगे? तो पीछे दूधासा ने कहा क्यों नहीं सिखाएंगे बेटी, तुम निमंत्रण दो। तो उन्होंने कहा अभी पुष्कर जा रहा हूं, पुष्कर से लौटते वक्त
अगर बीच मार्ग से आपसे मुलाकात हो जाए तो मीरा कहती है ऐसा करिए, एक घुड़सवारों को रथ के साथ भेज दीजिए पुष्कर, कि हमारे प्रथम योग के गुरु जो हैं वो निवृत्तिनाथ जी होंगे। और निवृत्तिनाथ जब रात को उनके साथ बैठे तो योगी निवृत्तिनाथ ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई डाकोर की। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हें एक बहुत प्यारी कथा सुनाऊं। एक बड़े दरिद्र ब्राह्मण थे, उनका नियम था हर एकादशी पर वो दर्शन करने जाते थे डाकोर के। और जब वो हर एकादशी पे पहुंचते तो अब वृद्ध हो चले थे। एक दिन सपने में उनको ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान ने, रणछोड़ लाए ने उन्हें आज्ञा दी है कि भाई यहां मेरा मन नहीं कर रहा है, यहां मेरी सेवा नहीं हो रही है, तुम मुझे उठाओ और अपने गांव ले चलो। जैसे ही इस बात को कहा डाकोर के लिए कि डाकोर ले चलो, तो वो रात में ही छटपटा के उठ गए। मीरा की आंखें भी बड़ी हो गई, सच्ची फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा क्या बताएं। जैसे ही रात्रि में उनको बोला तो जब एकादशी आई उन्होंने अपनी बैलगाड़ी उठाई और पहुंच गए। अब जब वो साक्षात रणछोड़ लाल के मंदिर में दर्शन कर रहे थे, चारों तरफ बड़े बड़े पहरेदार खड़े थे, इतने बड़े बड़े पुजारी खड़े थे, पंडा खड़े थे, सब चारों तरफ खड़े थे, हजारों भक्तों की भीड़ थी। उसके बीच में ये ब्राह्मण ने सोचा भगवान ने तो मुझे आज्ञा दी है कि भाई मुझे उठाओ, अपने अंक में लो भरो और मुझे ले चलो। तो उन्होंने कहा कैसे जाऊं, अगर इतनी भीड़ में जाता हूं तो लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने रात्रि के प्रहर तक इंतजार किया और पहुंच गए मंदिर में। ऊपर ले जाकर उन्होंने भगवान को अपने आगोश में भरा, दौड़कर आए, गूदड़ी रखी उसके ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर, और दौड़ा दिए अपने बैल। जैसे ही पुजारी पहुंचा सुबह सुबह के समय पर, तो उन्होंने देखा रणछोड़ राय की तो विग्रह ही नहीं है। जब देखा तो मीरा कहती है फिर क्या हुआ? भगवान ने उन्हें ऐसे कहा, भगवान ने उनसे बात करी। देखो हमारे जीवन में कोई आ जाए जो विश्वास से कह सके, क्योंकि मीरा ने योगी निवृत्तिनाथ से पूछा आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने कहा बेटी मैंने अपने को जान लिया है। जो अपने को जान लेता है वो भगवान को जान लेता है। तो अपने को कैसे जाना जाता है? कि योग एक मार्ग है जिससे मैंने जाना। और बेटी भगवान को मानने के बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन मैं योग पथ का पथिक हूं। तो आप मुझे अपने जैसा भजन करना सिखाइए। यहां पर वो आगोश में भरकर ब्राह्मण लेकर आए, पीछे से रणछोड़ लाए के पहरेदारों ने घुड़सवार दौड़ा दिए। पीछे से बवंडर आता देखकर उसने और तेजी से अपने बैलों को हाँकने की चेष्टा करी, लेकिन असंभव था घोड़ों के आगे बैलों का भागना। और वहीं उन्होंने कूद कर देखा कि कोई जगह मिल जाए जहां पर मैं अपने भगवान को जो लेकर आया हूं उनको कहीं छुपा दूं। तो छुपाने के लिए जैसे ही अग्रसर होकर उन्होंने उनको छुपाया गूदड़ी में, तो उन्होंने पीछे से आकर गुजरात के उन पहरेदारों ने कहा, ए चोटा, हमारे भगवान को चुरा के ले आया। तो उसने कहा अरे देखो मेरी गाड़ी खाली है, सब चीज जो बर्तन वर्तन थे सब फेंक दिए, लेकिन भगवान ने जो अंगवस्त्र धारण कर रखा था उसमें जो गोटा लगा था वो वहीं रह गया था। तो छूटते ही कहा कि अरे ये गोटा किसका है? ये तो हमारे आज के ही दर्शन में भगवान ने जो पटका पहना था ये तो वो है। और उसके बाद भी उसने मुंह न खोला, पिटता रहा, लहू लहान होता रहा। और धीरे धीरे देखा जिस सरोवर में भगवान को छिपाया था वो सरोवर भी लाल होने लगा। मीरा ने कहा सरोवर कैसे लाल हुआ? कि जो मार उस ब्राह्मण को पड़ी थी वो ब्राह्मण को न पड़ी, भगवान ने स्वीकार कर ली। अंदर से आवाज आई बड़ी गंभीर, बड़ी सशक्त, हे पहरेदारों, मैं अपनी इच्छा से आया हूं इसके साथ। तुमको 6 मास बाद पुनः एक स्वरूप इसी सरोवर में से प्राप्त होगा, उसको ले जाकर रणछोड़ राय के मंदिर में स्थापित कर देना। लेकिन अब मैं आज के बाद इस ब्राह्मण के साथ ही रहूंगा। और फिर बहुत सारी कथाएं आती हैं कि बड़ा प्रलोभन देने के लिए सब पहुंचे, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण किसी प्रलोभन में ना आया। योगी निवृत्तिनाथ को लेकर मेड़ता में प्रविष्ट हुए। यहां पर रनिवास में
जैसे हमारे यहाँ पर राजपूत परिवारों में रनिवास का तात्पर्य है जहाँ सारी घर की स्त्रियां इकट्ठी बैठती हैं। उस रनिवास में चर्चा होने लगी कि ये क्या कर रहे हैं हमारे अन्नदाता हुकुम। अन्नदाता कहते हैं अपने श्वशुर को जो उस परिवार में सबसे ज्येष्ठ हो। ये अन्नदाता हुकुम क्या कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? आज तक किसी भी घर की कन्या और हमारी राजकुमारियों में से किसी के साथ भी ऐसा ना किया। बाबाओं के बीच में बिठाते हैं और सारे की तरफ, चारों तरफ जरा देखो तो सही, ये रोज बाबाओं के बीच में बैठकर कीर्तन करती है। तो वहां वीरम देव जी की पत्नी मोटा बाबा हुकुम बोलती है कि एक बात बताने की है, जरा ये समझो तुम सब कि क्या कोई इसे राजकुमार इसलिए ब्याह के ले जाएगा कि ये उसे भजन कीर्तन सुनाए? अरे घर का काम भी सीखे, अरे रसोई में कैसे मसाले मिलाते हैं सारी कन्याएं हमारे घर की सीख रही हैं। ये रनिवास में चर्चा होती और रोज सुबह उठकर वो योग और प्राणायाम आदि की खूब सारी तरीके की अलग अलग आसनों में लिप्त होती। जब इन आसनों को लिप्त होते देखते हुए सारी की सारी घर की महिलाएं जितनी रनिवास में थीं, सारी काकी सास, सारी भाभा मोटा हुकुम जितनी भी थीं, जितनी गिरजा जी थीं, हमारी जोधा जी थीं, ये सारी घर में जो एक एक उसके ताऊ ने 2-2, 3-3, 4-4 ब्याह किए, इन सबके मन में बड़ा पीड़ा चल रही थी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक दिन बड़ी अद्भुत घटना हुई। वो घटना विलक्षण थी। देखिए, हमने 3 दिन जब निर्धारित किए तो ये प्लान किया कि इन 3 दिवस में पहले दिन की कथा केवल मीराबाई के विवाह के उपलक्ष्य तक होगी। उसके बाद विवाह के उपरांत मीराबाई का जीवन कैसा था तब तक होगी। और आखिरी दिवस, दैट इज ऑन द 16th, मीराबाई का महाप्रयाण हमारे द्वारकानाथ में कैसे हुआ उस पर होगी। तो जब 3 पार्ट्स में बांटा गया तो हमने सोचा इस प्रकार से, कुछ शेष जो लोग बहुत डिटेल में सुन चुके हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि आई हैव बीन लिटरली जंपिंग ऑन टू थिंग्स विच आई फील दैट बी ब्यूटिफुल टू लिसन। योगी निवृत्ति नाथ ने सारे आसन सिखाए, वज्रासन में बैठना, पद्मासन में बैठना, शीर्षासन करना, अलग अलग प्रकार के सारे आसनों में वो निपुण हो गई। आश्चर्यचकित थे कि कितने महीनों में जो आसन सिद्ध होते होंगे उसे 2-2 दिनों में हो रहे थे। लेकिन एक दिन जब सब मीरा को छोड़कर अपने कक्ष में चले गए और मीरा एकदम पद्मासन में बैठी, तो एक दिन उन्होंने जाने से पहले पूछा कि बेटी, योग में आनंद आ रहा है? तो कहती है, कभी कभी जब बैठती हूं आंख बंद कर कर तो मेरी भ्रकुटी के बीच में मुझे बहुत तेज प्रकाश अनुभव होता है। वो जो तेज प्रकाश, तेज पुंज मेरी भुर्वों मध्य, मेरी भौं के बीच में इतनी गर्माहट हो जाती है कि उसको स्पर्श करती हूं तो ऐसा ताप महसूस होता है। निवृत्तिनाथ मुस्कुरा दिए। उनके सपने में भी ये आश्चर्य की घटना थी। उनके जीवन में योग की सिद्धियां इतनी शीघ्र उनको प्राप्त नहीं हुई थी। एक दिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, वो अपने कक्ष में लेटी रही। सबने जाके कहा, क्या हुआ? कि मेरे नाभि पे से कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि कोई उठने को तत्पर है। वो अपने आप को पसारने की चेष्टा कर रहा है। योगी आदित्यनाथ आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपनी शिष्या को अपने छाती से लगाया। उन्होंने कहा, तुम जैसी शिष्या पाकर मैं धन्य हो गया। सबने घर में पूछा कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, ये इतनी बेचैन क्यों रहती है? उस रात्रि को जब छोड़ा तो हमारी मीराबाई की कुंडलिनी जागृत हो गई। वो इस प्रकार की योग की विधा में प्रविष्ट हुई कि उसकी जो नाभि पर पूरा का पूरा नागिन विराजमान थी, उसने अपने आप को जैसे ही ऊपर की ओर उठाया, हृदय के मार्ग से होती हुई कंठ को, रास्ते को खोलती हुई सारी गांठों को, और सीधे जाकर दोनों भौं के बीच में मध्य में आके उटक गई। वो इतनी छोटी सी थी
इस उछाल को जो भीतर उठा उसको सहन न कर पाई और उड़ती हुई जाकर सीधे टकराई। ऊपर कड़े लटके हुए थे, उन कड़ों में जाकर उसके जो परिधान थे, उसका जो ओढ़नी थी वो अटक गई और जब धीरे से नीचे गिरी तो किसी को पता न था कि क्या हुआ। रात्रि भर अचेत अवस्था में पड़ी रही। रोज सुबह जाकर सब गुरुजनों को, पुरोहित जी को, सबको प्रणाम करती, लेकिन आज कहीं निकल न पाई। जब सब लोग उसे देखने आए और उस समय देखा, उस कक्ष की अवस्था देखी, बिहारी दास जी उसके संगीत के गुरु थे, योगी निवृत्तिनाथ उसके योग के गुरु थे। उन्होंने इस दृश्य को देखा, वो अकल्पनीय था कि किसी ने मात्र 6 मास के अंदर अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली। जब वो कुंडलिनी जागृत होती हुई देखी तो किसी को परिवार में समझ में ना आया। हमारे योगी निवृत्तिनाथ ने दूदासा के हाथ पकड़ लिए। वीरमदेव ने कहा क्या हो गया, कहीं इसको कोई पीड़ा तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, राजवैद्य को बुला लेते हैं। सबको रोक कर निवृत्तिनाथ ने कहा आपको पता नहीं है, जरा ऊपर का कड़ा देखो। जब ये भीतर की सर्पणी, भीतर की नागिन ने अपना फन ऊपर की ओर मार्ग उठाया, कुंडलिनी जब जागृत हुई तो ये उठ गई होगी ऊपर और उठकर जाकर उसके वस्त्र उसमें अटक गए होंगे। जब रनिवास में पहुंची तो आज उसकी सारी ताइयां, उसकी सब जितनी भी बाबा हुकुम आदि सब ने उसे चारों तरफ से घेरा और बैठकर बोला बेटी तुम तो महान तपस्विनी हो गई। और आप समझो जिसके साथ ये घटना घट रही हो उसके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे होंगे। वो मार्ग जैसे ही हुआ तो योगी निवृत्तिनाथ को लगा जैसे भगवान ने आज्ञा दी। कुंडलिनी जागृत होने के बाद मेरा कार्य शेष हो गया। संगीत की शिक्षा के लिए बिहारी दास ब्रज से आए थे, वो उसे सिखाने लगे। एक दिन की बात है कि बिहारी दास जी ने कहा कि बेटी एक बार कोई बहुत प्यारा सा भजन गा के सुनाओ। जैसे ही उसने उस राग, उस स्वर को लिया, ये तुमने कहां सुना? कि कोई एक बार हमारे महल के बाहर आकर सुना रहा था। तो मात्र एक ही बार सुना, उसके बाद नहीं सुना। उन्होंने कहा नहीं। तो बिहारी दास ने कहा परिवार के सब जनों से, इतनी अद्भुत विलक्षण स्मृति हमने कभी नहीं देखी। ये आपकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। रनिवास में चर्चा होने लगी। मीराबाई के पिता ने बैठकर अपनी पत्नी झाली जी को कहा देखो, जब मीराबाई का जन्म हुआ तो सब ने कहा, उन्होंने जो साक्षात रूप में वर्णन किया, उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी कोई साधारण नहीं है। जो जन्माक्षर बनते हैं वो जन्माक्षर भी आज तक किसी कन्या के मैंने नहीं देखे। तो आप समझना इसके जीवन के पथ पर कोई रोड़ा बनकर इकट्ठे मत होना। तो मां ने, झाली जी ने कहा तो ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं कही? तो उन्होंने कहा तुम हर बात में इतने प्रश्न उठाती थी, तुम्हें क्या लगता है दूदासा हमारे अन्नदाता है, उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया है मीरा के लिए तो वो निर्णय साधारण नहीं हो सकता। आज बिहारी दास जी ने मीरा को एक पद सुनाया। पहुंच गए मंदिर में, बैठकर मीराबाई के ये भजनों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। 372 खुद के द्वारा रचित मीराबाई के भजन हैं। लेकिन मीराबाई के भजन जो है वो केवल उस अवस्था के नहीं है, जो उसके साथ घटता था वो संवाद था भगवान के साथ। वो संवाद इतना विलक्षण और अद्भुत था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो संवाद साक्षात रूप से भगवान को जो वो कहना चाहती थी, वो अगर शब्दों में ना कह पाए, बातचीत में ना कह पाए, तो तानपुरा उठाकर प्रारंभ कर देती थी। बिहारी दास जी ने संगीत की शिक्षा दी, और जब संगीत की शिक्षा दी तो यहां पर पहली बार वो अपने दादों के पास गई कि इस कक्ष में मेरी सारी बहन सखियों के साथ मुझे आनंद नहीं आता, क्या कहीं मुझे एकांत मिल सकता है? एकांत का तात्पर्य क्या है? एक में जिसका सबका अंत हो जाए। उतनी सी अवस्था पर अगर एक कन्या बोले कि मेरे को सब में सबका अंत कृष्ण में हो गया है,
तो उन्होंने कहा बेटी तू बता क्या करूं। तो आपको बताऊं, जब हम आ रहे थे यहां पर तो हमने कहा भाई मीरा की चर्चा जहां होती है उस जगह का नाम बदल जाना चाहिए, उस जगह का नाम मीरा का श्याम कुंज हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मीरा के दुदासा ने श्रवण किया तो उन्होंने उस महल में एक बड़ा सुंदर सा मंदिर बनवाया, एक परकोटे में, और चारों तरफ उसके बागान था और बीच में बड़ा सुंदर भगवान गिरधर गोपाल का मंदिर बना दिया। अब मीरा का पूरा समय उस मंदिर में ही बीतता था। वो बागें सिलती, वो उनसे चर्चा करती, वो उनसे बातचीत करती, और धीरे धीरे एक अवस्था होती जो मूर्छित अवस्था में परिणत हो जाता। सी द क्वेश्चन अराइजेस, हमने जब आपसे ये कहा, क्योंकि आज आप जो सुन रहे हैं वो बड़ा प्रारंभिक पाठ है। हम हमेशा कहते हैं कि जब कथा एक दिवस की बजाय, एक दिवस में तो कुछ रंग ही नहीं चढ़ता, लेकिन जब 2 और 3 दिवस की होती है तो प्रथम दिवस में वो सारे प्रश्न जो हमारे मन के अंदर उठते हैं, मीराबाई को भगवान का आवेश होने लगा। वो जैसे ही श्याम कुंज में प्रविष्ट करती और प्रविष्ट होते ही भगवान की सेवा लीला करने के बाद भगवान को निहारती तो बैठे बैठे वो मूर्छित हो जाती। सारी की सारी उसकी जो दासियां थी उनका नाम था मंगला, मिथुला, चंपा, चमेली, ये सब अलग अलग नामों की दासियां उसके साथ आ गई। गंगा, तो उस समय जो मिली, एक का पति मर गया था, मंगला नाम की दासी आई, उसके साथ रहने लगी और ये जाकर दौड़ दौड़ कर सबको खबर करती, ऐसा हो गया आज हमारी बाईसा के साथ, आज हमारी बाईसा के साथ ऐसा घटित हो गया। तो एक दिन मीराबाई ने भगवान से साक्षात कहा कि क्या आप कभी मुझे दर्शन नहीं दोगे? मैं आपको पूरे दिन सजाती हूं, संवारती हूं, आपको नहीं लगता कि आपके लिए मैं कुछ हूं? इसका आभास मुझे कैसे होगा? ये छोटी सी कन्या, ये देखो हट जो है, हमारे यहां प्रहलाद का हट, हमारे यहां ध्रुव का हट, और कलयुग में मीरा का हट। साक्षात विग्रह ने मूर्ति टस से मस न हुई, लेकिन मीरा जब मूर्छित अवस्था में पहुंची तो उसने अपने आप को कहां देखा कि वो व्रज में यमुना के किनारे पर बैठी है और बैठते हुए एक भरे हुए मटके को अपनी गोदी में लेकर बैठी है और कोई भाव दशा में है, उस अवस्था में कि आज तक कृष्ण ने उसे न देखा, न उनके समीप आए। लेकिन उस जल में से उसने मयूर पिच्छ का एक बड़ा सुंदर सा प्रतिबिंब दिखा। वो एकदम हड़बड़ा गई उस स्वरूप को देखकर। उसके हाथ से वो जो मटका था वो नीचे की ओर जल में बह गया। जब वो बहा तो उसने कूद लगाई। जब कूद लगाई तो बहाव तेज था, मीरा बहती चली जा रही थी। मीरा को लगा अब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पर उसी समय 2 बलिष्ठ बाहुओं ने उसे पकड़ा, संभाला और उसका घड़ा पकड़ लिया, लेकर आए। वो मूर्छित हो गई थी। जब उसे उठाया और गोदी पे ले जाकर घाट के किनारे पर ले जाकर बैठाया तो अपने घुटने के ऊपर मीरा के माथे को रख लिया। तो उसने कहा बस बिल्कुल मरने की तैयारी कर रही थी, तुझे तो मेरी बिल्कुल फिक्र ना है, तू समझ ही ना रही। अरे जल को प्रवाह तो देखती, अरे मैं संगी तो हो, एक बार कहती तो सही कि मेरा मटका जो है जरा उठा दो, बड़ा भारी हो गया है। मीरा उस भावावस्था में इतनी व्याकुल हो गई, उसे जीवन में कभी अनुभव ही न हुआ कि कृष्ण की अनुभवता। अगर कृष्ण आपको आकर पहली बार स्पर्श करें तो क्या होगा? जब देखा तो सारी जो उसकी इस कलिकाल में जो दासियां थी, उन्होंने देखा मीरा पूरी तरह से भीगी हुई है। मीरा कैसे भीग गई? यहां पर तो कहीं दूर दूर तक न कोई घड़ा है, न कोई पानी की व्यवस्था है, वो श्याम कुंज के बीच में बैठी है। लेकिन जब मीरा की आंखें खुली, उन्होंने जल डाला, उठाया, पंखा झला, सब करने की चेष्टा करी, तो मीरा ने छूटते ही कहा, ओ श्याम सुंदर कहां गए? हे मेरे गोविंद, हे नाथ, इतने निकट थे तो मुझे वापस क्यों भेजा, संग क्यों न ले गए? And wherever I have been speaking this part of Meera, somebody says, क्या मीरा के मन में ये कोई hallucinations आते थे?
क्या मीरा के मन में वो सिर्फ कल्पना करती थी और कल्पना उसके जीवन में उसको उस जगह ले जाती थी? ना, क्या करती थी मीरा? ये आंसर अगर आप समझिए, हम मीरा के ही 525वें वर्ष के इस उत्सव में न शेयर कर पाए तो ये ऐसा होगा जैसे हमने उस विषय पे कोई किसी प्रकार की भक्त का सारा, क्योंकि ये पहला परिचय है मीरा से, कि मीरा के जीवन में भाव की अवस्था में मीरा पहुंच जाती थी और मीरा का शरीर पीछे छूट जाता था और मीरा उस भाव में जो प्रकट करती थी वो सजीव होने लग जाता था उसके साथ। इतना सजीव होने लगता था कि उसके शरीर के ऊपर उसके, जैसे उस समय उसने जल में प्रविष्ट किया तो वो भीग गई थी, इस श्याम कुंज में भी वो भीग गई थी। यानी वहां से आगमन उसका होता था बार बार कलयुग में। और एक एक चीज का प्रमाण इसलिए देना आवश्यक है कि आप में से कोई प्रश्न कर सकता है ये किताब किसने लिखी? करना चाहिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि द वर्स्ट वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी दैट हैज बीन यूज्ड इज मिथ, इज माइथोलॉजी। जो हमारी समझ से परे हो जाए, जो हमें समझ में ना आए, तो हम उसको क्या कहते हैं? कल्पनीय होगा। लेकिन यह कल्पनीय ही सजीव होने लगा। जैसे ही 7 वर्ष की हुई, 7 वर्ष की अवस्था में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आया। सुबह उठते ही उसने चंपा को आवाज लगाई, चंपा चंपा, अरे आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तैयारी करो, सजाओ मेरे श्याम कुंज को, ऐसा लगे कि साक्षात भगवान का आगमन हो गया है। और भीतर से पीड़ा क्या थी कि 7 जन्माष्टमियां निकल चुकी है और मैं कुछ न कर पाई। 7 जैसे हम कहते हैं बसंत निकल गए और हमने कुछ न किया अपने जीवन काल में, लेकिन 7 जन्माष्टमियां निकल गई, कोई उत्सव न बना। उसने जाकर अपने परिवार में सब जनों को कहा आज शाम निकुंज में सबको आना है, लेकिन बिहारी दास और दूदासर ने कहा कि भाई हमारे 4 भुजा नाथ के मंदिर में तो हर वर्ष इतना विलक्षण उत्सव होता है, उस उत्सव में तो तुम्हें मीरा सम्मिलित होना पड़ेगा। और जब मीराबाई से कहा तो मीरा ने हाथ जोड़कर अपने गुरुवर से कहा आप कहते हैं तो एक पल पहले प्रहर के लिए आ जाऊं, लेकिन कहते हैं ना मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, उस समय मैं अपने श्याम कुंज के पास आ जाऊं। तो आज पहली बार जब मीराबाई ने देखा यहां पर रनिवास में उसके विवाह की तैयारियां होने लगी, आज उसको पता है उसके साक्षात भगवान का उत्सव है, उसके पति का उत्सव है। क्यों? एक बार जब मीराबाई ने हाथी पर जाता हुआ बींद देखा तो उसने अपनी अटारी पर खड़े होकर दौड़कर अपनी मैया से पूछा ये जो जा रहा है बैठकर ऊपर ये कौन है? अरे ये तो दूल्हा है, बींद है। तो सब लड़कियों का बींद होता है? हाँ। अरे ये हमारे नगर सेठ के यहाँ पर उसका जवाई बनने जा रहा है, अपनी बींदनी को लेने जा रहा है, तो मेरा बींद कहाँ है? वो छोटी सी जो अवस्था होती है, आप समझना हमने क्या कह दिया। आप देखेंगे 3, 4, 5 वर्ष की अवस्था में आपने अपने बालक को जो नींव डाली वो उसके जीवन पर्यंत के लिए एक गांठ बन गई, एक प्रतिज्ञा बन गई। हमारी झाली जी ने उससे कहा कि भाई तेरा बींद भी है, अब इतनी जल्दी क्या बताऊं कि तेरा बींद कहां है, इतनी समय से क्या बताऊं कि नहीं बताओ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो धरती पे लेट गई, मचल गई, पांव हिलाने लगी, मेरा बींद बताओ, मेरा बींद बताओ। लेकिन वहीं पर भगवान गिरधर गोपाल का स्वरूप था, तो मैया ने मजे मजे में कह दिया कि अरे तेरा बींद तो गिरधर गोपाल है। और जब ये कहा, ये देखिए ये पार्ट ऑफ द स्टोरी है जो हम सब मीराबाई के साथ रिलेट कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बोला। क्यों? इसका जो वास्तविक परिचय मीरा के साथ हुआ जब 7वां जन्मोत्सव मना रही थी, तो मीरा ने जाकर अपनी दासियों को कहा जाओ मेरी मैया के पास और मां से जाके कहो, भाबा हुकुम से कहो कि मेरे लिए आज सबसे अद्भुत श्रृंगार सामग्री भेजें और मेरे जितने भी बड़े सुंदर सुंदर घाघरे आदि चोली जो उन्होंने बना के रखे हैं उन सबको भेजें, सारे आभूषण भेजें।
अरे सबको आनंदित हो गया, आज मीरा सज कर आई। 7 वर्ष की मीरा उस जन्मोत्सव के उत्सव में जब आज पहली बार सजी, जहां रनिवास में पहले से ही उसके विवाह की चर्चाएं हो रही हैं, बड़े बड़े राजकुमार आज चारभुजा नाथ के मंदिर में भगवान के दर्शन और आरती में सम्मिलित होंगे। अपनी 8 दासियों के बीच में घिरकर जब मीरा ने अपने श्याम कुंज से चारभुजा नाथ की तरफ प्रयाण किया तो ऐसा साक्षात लगा जैसे अद्भुत रूप से कोई लक्ष्मी ही विराजमान होकर चल रही है। और जब उस स्थान पर जाकर वो पहुंची और चारभुजा नाथ के दर्शन कर कर बैठी थी और सामने बिहारी दास और उसके दूदासा ने कहा कि बेटी आज तुम ही पहली बार करो, तो उस 7 वर्ष की अवस्था पे जो पहला पद उसने लिखा, उस पद को लेकर उसने चारभुजा नाथ के आगे अर्पण कर दिया, मेरे नैनन में बसो नंदलाल। That was the first पद which was written by मीराबाई। मेरे नैनन में बसो, इसका तात्पर्य क्या है? अरे आप अपने जीवन में अपने नैनों में पूरा जगत संभालो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज निमंत्रण है। आज उस 7वें वर्ष की अवस्था पर जन्माष्टमी के उत्सव में मीरा ने अपने श्याम सुंदर, अपने गिरधर गोपाल को अपनी आंखों में समाने के लिए निमंत्रण दिया। और जब निमंत्रण दिया, वो जिस रूप में आई, जो उसका रूप निखर कर आया, एक एक जना देखकर आनंदित हो गया। सब लोग देखने लगे अपलक दृष्टि से जो उसने गान किया। यहां चारों तरफ सब बैठकर रोने लगे कि ऐसा सौंदर्य, ऐसा ऐश्वर्य, अरे ये किसी छोटे मोटे राजा की बहू नहीं बनेगी, ये तो साक्षात मेदपाट के राजकुमार के लिए पत्नी बनने जैसी है। जब ये बातें होने लगी, वो बीच में से उठी, उसने आज्ञा ली और श्याम कुंज में जाकर अपने गिरधर गोपाल के पास पहुंचकर उसने फिर से उनका जन्मोत्सव मनाया। और जब जन्मोत्सव की तैयारी करने लगी तो उस जन्मोत्सव की तैयारी में आज उसने कहा, तैयारी कर, मेरे साक्षात गोविंद आते होंगे। देखिए, हमारी भक्ति का और वो जो हम भक्ति की चर्चा कर रहे हैं उसमें विशेष भाव का अंतर है। उसने सारी अपनी दासियों को कहा भगवान पधारते होंगे। जब कहा कि भगवान का आगमन होने वाला है, तैयारी करो, तो चारों तरफ से जितना भी तैयार का आनंद था। और आप समझना, तैयारी कभी किसी वस्तु से नहीं होती है, आपके हृदय से होती है। आपके हृदय के पटल पर अगर भगवान व्यवस्थित है, अवस्थित है, तो आपने उनको निमंत्रण दिया। और जब निमंत्रण दिया तो वो भावावेश अवस्था हो गई। पहली बार उठकर मीराबाई का नृत्य प्रारंभ हुआ। अरे वो कीर्तन करती थी, पहली बार नर्तकी बन गई। वो प्रतीक्षा करती थी, वो प्रार्थना बन गई। आज जब सातवें की वर्ष की अवस्था पर उसने जन्मोत्सव का उत्सव रखा तो साक्षात ऐसा लगा कि उस उत्सव के आनंद को और वृद्धि करने के लिए साक्षात श्री कृष्ण का आगमन होता है। और श्री कृष्ण के आगमन के साथ वो फिर मूर्छित अवस्था में पहुंचती है। सारी दासियां पीछे की तरफ बड़े भाव से देखती हैं कि अब मीरा बैठे बैठे नृत्य करती हुई धरती पर बैठी, धरती करते आंखें ऊपर की ओर हुई और मीरा कहां रही, शरीर अचेतन पड़ गया। ऐसा लगा कि भगवान के उस लोक में ये शरीर यहीं पड़ा रहा और उससे जाकर उसका मिलन हो गया। वो कहां रही? वो उस अवस्था में जब सब परिवार के जन लौट कर आए कि चलो श्याम कुंज में भी जाकर मीरा के साथ उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं, तो मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। लोगों ने हिलाया लेकिन कुछ हिलाने का फर्क न पड़ा। क्यों? क्योंकि साक्षात लगा और वो बड़बड़ा रही है, देख चंपा आ गए। एक दृष्टि है और एक देखना है। एक दृष्टि है जो अपलक, जो दिख नहीं सकता औरों को, वो दृष्टि प्रदान करती है। जो संसार देख सकता है वो आंखों से कोई भी देख सकता है। और जब वो सज धज कर भगवान कृष्ण का आगमन हुआ और उस आगमन के साथ लेकर उसने आरती उठाना किया, उस अवस्था में उसकी आत्मा जब आरती कर रही है तो पड़े पड़े एक हाथ उठा और उसने आरती करना प्रारंभ कर दिया। उसके गुरुवर, पुरोहित आदि सब थे कि अरे जैसे साक्षात कोई
कोई ऐसी विलक्षणा, कोई ऐसी गोपांगना जिसने उस समय पर सेवा करी हो, क्योंकि श्याम कुंज के भीतर घुसते हुए ऐसा साक्षात लगा, वहां से केसर की गंध आ रही है, वहां से ऐसा आ रहा है, पूरी सुगंधी ऐसी हो गई जैसे कृष्ण उस जगह पर मौजूद हो। उस व्यवस्था को देखकर विलक्षण था। मीराबाई को सबने सचेत करने की चेष्टा करी। दूसरे दिन विलक्षण अद्भुत तरीके से नंदोत्सव का उत्सव मनाया गया। और नंदोत्सव के उत्सव के पश्चात जब वो आज पुनः रनिवास में पहुंची, अपनी सारी काकी भौजाइयों के बीच में पहुंची, तो वहां जाकर उसने देखा कि सब ने कहा कल क्या हुआ लाडल पुत्र? तो उसने कहा कल मेरे ठाकुर आए थे, उन्होंने, आपको पता है, मैंने इतना सुंदर उत्सव उनके लिए किया, उस उत्सव के लिए वो मुझे देने के लिए साक्षात अपने आप जो जो प्रसाधन इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को व्याप्त न होते वो पहनी हुई थी मीराबाई। यानी आप अगर किसी का उत्सव मनाएं और कोई आपको अपनी निशानी देकर जाए, यानी जो लीला वो रच रही थी, जो लीला गोविंद रच रहे थे, वो प्रत्यक्ष होने लगी। क्योंकि जब उसके हाथ में कड़े को देखा, उस कड़े को उठाकर उन्होंने कहा कि ये मीरा कह रही है कृष्ण ने दिया है, तो उन्होंने कहा जरा एक बार दिखाओ। जब उसको खोला तो ऐसा लगा कि ऐसे हीरक और ऐसे अलंकार तो हमारे आसपास के राज्यों में भी प्राप्त नहीं होते। उसको धारण कराकर चले गए। मीरा ने उसको भी उठाया, भगवान के आगे अर्पण किया कि आपने दिया, मुझे क्या पता था, उस समय पर आप दे गए, उस अवस्था में आप दे गए। और वो वस्तु उसके भाव की सीमा पर, भाव के उस छलांग पर जो घटा, उसके चिन्ह दिखने लगे। ये चंपा और मिथिला और मंगला जो थी, रोज कोने में बैठकर कुछ न कुछ लिखती रहती। आपको पता है, ये जितनी इसकी कथा है, ये सारी की सारी चंपा नाम की गोपी की लिखी हुई है। वो कहां से आई किसी को न पता चला, वो किसने भेजी किसी को पता न चला। एक दिन बस ऐसे ही आ गई, और जब आई तो यहां पर सबने उसके बारे में खबर पहुंचाई। खूब बड़े बड़े नगाड़ों से लेकर आसपास के सारे गांव में कि चंपा नाम की कन्या पहुंच गई है मेड़ता के गढ़ में, और वो मीरा के पास है, मीरा की शरण में है। अगर कोई उसके माता पिता हो तो भैया आ जाना और उसको ले जाना। लेकिन 3 दिनों तक खूब नगाड़े बजते रहे, लेकिन कोई उसको लेने ना आया। तो मीरा ने कहा अब तू मेरे पास ही रह जा। तो चंपा, मिथिला आदि सब करते रहे। यहां वीरमदेव जी अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। वीरमदेव हुए हमारी मीरा के ताऊ, और उन ताऊ को बड़ी चिंता थी कि हमारे जो पिता हैं वो तो इसको बिल्कुल साधु और योगिनी और तपस्विनी बनाने पर लगे हैं, पर मीरा का जो रूप देखा मैंने चारभुजा नाथ के मंदिर पर, तुम सही कहती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ से मेवाड़ के राजा के यहाँ पर रिश्ता पहुंच जाए। मेवाड़ के राजा की बहन की शादी हुई मीरा के ताऊ से, तो जो चर्चा कर रही है अपने भतीजे के लिए, मीरा के लिए, वो भोजराज की चर्चा कर रही है। अब भोजराज के को जैसे ही पता चला कि उनकी बुआ जो है वो गर्भ से है, तो पीहर की तरफ से भतीजा आता है अपनी बुआ को लेने के लिए, और पूरे लवाबजे के साथ आता है। मीरा बताती है यहां पर वीरमदेव जी की इतनी सारी पत्नियां हैं, लेकिन जो ठाठ मेवाड़ की राजकुमारी के हैं वैसा ठाठ कहीं नहीं है। मैं एक दिन बागे सिल रही थी, तो बड़े चांदी के थालों में बड़ा सारा सामान लेकर उनका एक प्रधान सेवक हमारी मेवाड़ की जो मेवाड़नी जी थी उनके महल की तरफ घुसा। तो जैसे ही घुसा तो मीराबाई ने सोचा कि कोई विलक्षण बात है, सब इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं। और एक एक कर कर वहां से दासियां आने लगी, कुछ मिष्टान लेकर,
कुछ 4 सोने की गिन्नियां लेकर, कोई आभूषण लेकर, लो लाडनपूत तुम्हारी ताईसा ने आज ये भेजा है, भोटा भाबा हुकुम ने तुम्हें ये भेजा है। जब चारों तरफ से आने लगा, मीरा को बिल्कुल पता न चला। मीरा ने को उसकी ताई ने एक बार निमंत्रण दिया, जिनको वो भोटा भाबा हुकुम कहती। जब वो उनके महल में पहुंची और वहां बैठकर वो अपने परिवार की गाथा गाती, चित्तौड़ के महल की गाथा गाती और मीरा को सुनाती। मीरा बैठकर सब सुनती, इच्छा कहीं ना रहती। वो सोचती जल्दी से जाऊं, बात इनकी खत्म हो तो श्याम कुंज में पहुंच जाऊं। तो जब वीरमदेव और उनके पति और पत्नी बैठने लगे संग में, तो उन्होंने कहा कि क्या हम छुटबाई की बहन है, यानी चौथे भाई की बेटी है, और कहां मेवाड़ का राज्य, वहां के जो साक्षात राजकुमार हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, उनके साथ विवाह हमारी छोटे भाई की बेटी का होगा? तो उन्होंने कहा क्यों ना होगा, जरा रूप देखो मीरा का, लावण्य देखो, कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना ले जाएगा, और कौन सी बेटी घर में खटती है। ऐसा करो आप जाके चर्चा छेड़ो। उन्होंने कहा चर्चा छेड़नी नहीं है, छेड़ दी है। मेरे को मेरे पीहर वाले बुला रहे हैं और मैंने भोज को बुला लिया है। मैंने अपने भाई से बात कर ली है और भोजराज को निमंत्रण सौंप दिया है। यहां पर एक मीरा का भाई है जिसका बहुत प्यारा विवरण आता है, उसका नाम है जयमल। वो जयमल जब आए भोजराज, तो जयमल उनको अपना मेड़ता दिखाने के लिए ले गए। मेड़ता में चारों तरफ भ्रमण किया, सब जगह ले गए, और जैसे ही उस गढ़ के अंदर केंद्र में पहुंचे तो रनिवास से होते हुए बगीचे में निकले तो एकदम किसी के एक तारा लेकर गाने का स्वर सुनाई दिया। उन्होंने छूटते ही कहा जैसे आम की डाली पर कोई कोयल बैठी हो, ऐसा अद्भुत विलक्षण स्वर। वो उस स्वर की ओर चल पड़े। जयमल उनके पीछे पीछे था, तो उसने कहा कौन गा रहा है? तो उन्होंने कहा ये मेरी बाईसा है। अब इस समय कन्याओं में हमारे यहां सबसे बड़ी यही है। मीरा का ब्याह कैसे हुआ, मीरा की ये स्थिति कैसे बनी, आप समझो भगवान क्या चाहते हैं। तो यहां पर वो अपने अंदर बैठकर बागे सिलकर रखा और एक एक तारा उठाया। ये एक तारा उसको रैदास जी से मिला था। गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु पूर्णिमा पर उसने अपने दुदासे से कहा कि मैंने सुना है सब कहते हैं गुरु अवश्य होना चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटी सच में गुरु अवश्य होना चाहिए, लेकिन गुरु को तुम नहीं ढूंढते हो, गुरु तुमको ढूंढता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो अभी तक योगी निवृत्तिनाथ थे, जो अभी तक बिहारी दास जी थे, ये तुम्हारे शिक्षा गुरु थे, तुम्हारे दीक्षा गुरु नहीं थे। और दौड़कर मीराबाई जाकर अपने गोविंद के भगवान के सामने श्याम कुंज में जाके कहती है कि आज जो गुरु मेरे मेड़ता में प्रवेश करेंगे वही मेरे गुरु होंगे। तो भगवान आप उनको स्वयं ही भेज दो, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। और वहां बैठकर अपने भगवान की लीला, अपने चिंतन, अपनी कुछ शब्दावली को हेर फेर कर लिखने की चेष्टा करने लगी। और एकदम पता चला कि कोई एक रैदास नाम के गुरु आए हैं, बड़ा प्यारा गा रहे हैं, आंख उनकी गीली है। जैसे ही पता चला तो दूधा सा को पता था गुरु पूर्णिमा पे वो गुरु ढूंढ रही है। उन्होंने कहा अरे मीरा देख, तेरे भगवान ने, गिरधर गोपाल ने तेरे लिए गुरु भेज दिए। मीरा पागल हो गई, दौड़ती हुई गई और जाकर रैदास के चरणों में अपना माथा नवाया। तो उन्होंने कहा इतनी आनंदित हो रही है आपकी बेटी की, क्यों? आज ही तो सुबह उसने हमारे साक्षात भगवान गिरधर गोपाल से कहा कि मेरे लिए गुरु भेज दो। तो उसने कहा आज मैंने उनसे कहा था सुबह कि जो आज संत मेरे यहां प्रवेश करेंगे वो मेरे गुरु होंगे। और जब स्वीकार किया तो उन्होंने अपनी जप माला और एक तारा मीरा को अर्पण कर दिया। वो एक तारा लेकर मीरा आज बैठी थी। जब राजा भोजराज निकले, जयमल के साथ आए, थोड़ी देर तक खड़े रहे। चारों तरफ इतनी पक्षियों का कलरव था, ऐसी सुगंधी बह रही थी उस कक्ष में से।
वो भोजराज बाहर खड़े होकर धीरे धीरे सीढ़ियां बढ़ाकर अंदर प्रविष्ट हुए। जैसे ही प्रविष्ट हुए तो एक बार आपको स्वरूप का दर्शन कराऊं मीरा का। मीरा ने अपने माथे पर आंचल ले रखा था। आंचल पे थोड़ा तिकोना तिकोना गोटा लगा हुआ था। नासिका में एक हीरे की बड़ी सुंदर सी नथ धारण हो रखी थी। बड़े सुंदर आभूषण थे। रंग ऐसा था कि सूर्य की उष्मा में एकदम दमक रही थी, ऐसे जैसे स्वर्ण की कांति हो। और उस समय पर, उस अवस्था पर पीछे से जैसे ही जयमल के पदचाप की आवाज सुनाई दी तो पदचाप की आवाज सुनते ही मीरा ने कहा, कौन? तो जयमल ने कहा, बाईसा मैं। रास्ते में कहते कहते आ रहे हैं, किसी एक साधु ने हमारी बाईसा को एक ठाकुर बख्शे हैं। अब उन्होंने उन भगवान को अपना पति मान लिया है। अब वो विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन पूरा परिवार उनके ऊपर दबाव बना रहा है। ये जयमल बोल रहे हैं भोज से। भोज ये सब बात सुनते हुए बेखबर बेसुध अंदर घुसते हैं। जैसे ही वो सौंदर्य देखते हैं, वो देखते हैं साक्षात जैसे किसी में, आप समझना, आप कहो तुम बड़ी सुंदर हो, अरे वो सुंदरता जगत वाली दृष्टिकोण की है। अगर साक्षात किसी में नूर भगवान उतार दें तो वो कितना विलक्षण होगा। जब उस समय देखा, हल्का सा पवन का झोंका आया और वो जो आंचल था वो थोड़ा सा हिला और उनके अधर और कपोलों के दर्शन हुए। नजरें नीचे कर ली, क्योंकि अभी तक सुनते आए थे कि खुद अपने आप को कि मैं मीरा का वर बनने वाला हूं, लेकिन अंदर प्रविष्ट होते होते सुन लिया जयमल से कि वो भगवान गिरधर गोपाल को अपना पति मानती है। उन्होंने वो दृष्टि जो अभी तक इच्छा और जिज्ञासा के रूप में बढ़ रही थी, उस इच्छा को नीचे शरणागत कर कर मीरा के चरण, जो एक हल्का सा नख दिख रहा था, उसके ऊपर टिका दी। जैसे ही उसके ऊपर टिकाई तो मीरा ने अपने आप को संभाला कि जयमल के साथ कोई और भी आए हैं। अरे ये तो मेदपाट के राजकुमार है, ये हिंदुआ उसके सूर्य हैं, अरे ये चित्तौड़ के होने वाले भावी सम्राट हैं, अरे जो हमारी वीरम देव जी हैं उनके हमारी मोटा भाबा हुकुम के भतीजे हैं और वो सगर्भा हैं, इसलिए ये लेने के लिए आए हैं। और जहां पर उन्होंने भाव से कहा कि मैंने सुना है मेरी और आपकी विवाह के प्रस्ताव की बात हो रही है, तो भोजराज ने हाथ जोड़कर भगवान गिरधर गोपाल के आगे पहले मस्तक नवाया और मस्तक नवा पर भी मीरा से बोले कि देखो, अगर ये विवाह होना लिखा है तो आप हां कर देना। मैं आपको वचन देता हूं। इस वचन को कलयुग के भीष्म की उपमा दी गई कि कलयुग का भीष्म कैसा होता कि इस कली काल में किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली थी। मीरा के सामने होने वाले पति भोजराज हाथ जोड़कर खड़े थे, मुझे अवसर दो, आप अपनी और साक्षात गिरधर गोपाल की सेवा का मैं दास बन के रहूंगा। जगत के लिए ये विवाह होगा, लेकिन मेरे और आपके बीच में ये विवाह कभी संपन्न नहीं होगा। अगर आप इस बात को मानती हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए हर तरह से तैयार हूं। क्यों? मेरे को अवसर और सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं आपकी और आपके भगवान की सेवा कर पाऊं। मीरा ने उस समय उत्तर भी न दिया। मीरा अपने दूदासा के पास पहुंची और दूदासा से जाकर एक प्रश्न किया कि एक बींदनी के कितने बींद होते हैं? उन्होंने कहा एक बींदनी का एक ही बींद हो सकता है, बींद की बहुत सारी बींदड़ियां हो सकती हैं। देखो तुम्हारे ताऊ के पास, तुम्हारे और काकोसा के पास सबकी बींदड़ियां बहुत सारी हैं, लेकिन एक ही बींद हो सकता है एक बींदड़ी का। तो जब आप जानते हैं कि मेरा बींद जो है वो मेरा गिरधर गोपाल है, तो आप क्यों ये चर्चा कर रहे हैं? तो उस समय दूदासा ने भी एक प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरा ब्याह किसी से होने न दूंगा। और ये भाव लेकर अपनी बुआ को लेकर चित्तौड़ के मेदपाट के राजकुमार वापस चले गए। एक समय आया जिस समय के अनुसार यहां पर उनका शरीर शांत हुआ। मीरा के सबसे बड़े जो संबल थे, मीरा को तराशने और गाढ़ने वाले जो थे, वो उसके दूदासा, उसके बाबा, उनका शरीर शांत हो गया।
और रनिवास में हर प्रकार की घटनाएं बढ़ने लगी। जब इस प्रकार से घटनाओं के होते हुए देखा और उसे वो वचन याद आया कि देखो गिरधर गोपाल, ये बात निश्चित है कि जब उन्होंने एक प्रतिज्ञा दी है तो मैं अंतर मन से केवल तुम्हारी ब्याहता हूं, ये सब मिलकर मेरी शादी उनसे करा रहे हैं। देखिए आज के इस पक्ष को यहीं पर विश्राम देंगे। जब विवाह का प्रस्ताव गया तो चारों तरफ से जितनी भी जगहों पर था, किसी को आश्चर्य की सीमा न रही। यहां तो सबके हौसले आनंदित थे। एक चर्चा बार बार हुई चित्तौड़ के राजमहल में, जब वहां की रानी और वहां के राणा सांगा, जिनकी कथाएं आती हैं कि जो एक आंख, एक टांग और एक हाथ के थे और उनके शरीर पर 80 घाव थे, जब उन्होंने सुना कि मेड़ता की मेणतणी जी का, क्योंकि मीराबाई को चित्तौड़ में जाकर मेणतणी की उपाधि मिली, उनको सब बोलते मेणतणी आ रही है, मेणतणी आ रही है, तो वहां आनंद की परिसीमा ना रही। उन सब ने कहा भाई शौर्य की गाथा भी है, लेकिन हमारे राज्य में अगर कोई भक्ति प्रवेश करती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, भोज का संबंध उसके साथ हो जाए। तैयारियां हुई बहुत ही विलक्षण तरीके से विवाह संपन्न होने के लिए। खूब लंबी चौड़ी बारात गई, सब कुछ गया, और जब पहुंचे मेड़ता में पूरे चित्तौड़ वासी, तो उन सब चित्तौड़ वासियों के बीच में जरा कल्पना करना, जरा दृष्टि करना, जरा देख पाना कि जब मीराबाई और भोजराज बैठे थे तो मीराबाई खाली हाथ नहीं गई। मीराबाई हाथ में अपने गिरधर गोपाल को पहले छाती से लगा के गई, और जब बैठी भोजराज के उस आसन पर जहां पति पत्नी बींदनी बैठते हैं, तो उन्होंने बीच में अपने भगवान गिरधर गोपाल को स्थान दिया। जब देखा कि गिरधर गोपाल को आसन देना है तो भोजराज अपने आप सरक गए। भोजराज ने बीच में ही नहीं, बिल्कुल अपने उस स्थान पर जहां बींद को होना चाहिए उनको रहने दिया, और अपने आप मीरा से दूर हट गए। ऐसा लगा जैसे वो स्वयं बैठ के इन दोनों का ब्याह करा रहे हो। तो जैसे भाइयों के बीच में आनंद, हंसी, टिटोलियां होती हैं, ऐसे उनके भाई विक्रमादित्य, उनके भाई रतन सिंह सब आए और उन्होंने आके कहा कि भाई ये टोटका क्या है। ये जो टोटका है कि भाई मेड़तनी आई है, मेड़ता की जो बहू आ रही है, वो अपने संग अपने ठाकुर को बीच में रख रही है, तुम्हारे और अपने। तो उन्होंने कहा कि हाँ रख रही है, बिल्कुल। तो सब भाइयों ने आकर सामने खड़े होकर परिहास करने लगे। तो भोजराज ने उसी समय रोककर एक बात कही कि तुम सबसे एक बात कहूं, टोटका ये नहीं है, टोटका मैं हूं, मैं टोटका हूं। दूल्हा तो ये है, बींद तो ये है, टोटका मैं हूं। तो उसी समय भाइयों ने कहा ये कौन सी रीति है बेड़थ वालों की कि हमारे भाई को बींद बनाकर और दूसरे भगवान कृष्ण को की मूर्ति लेकर उन्होंने बीच में रख दी। तो यानी जितनी भी उसके संस्कार हुए, देखिए अलग अलग ग्रंथों में इसका बड़ा विलक्षण वर्णन हुआ। आप समझिएगा, जब आप लोगों ने यहां से हमारे मीराबाई के विषय में लोगों के पास मैसेजेस भेजने चालू करे, तो आपने एक प्रश्न किया, व्हाट पार्ट ऑफ मीरा डू यू लाइक? हर डिफाइंस, हर सरेंडर, हर डिवोशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आप समझना, नारी में सबसे ज्यादा शक्ति आत्मबल की होती है। मीराबाई से लाइव एग्जाम्पल और किसका हो सकता है? उससे ज्यादा विलक्षण आत्मशक्ति का प्रदर्शन और कोई कर ही नहीं सकता। उस समय पर जहां कन्याओं की, स्त्रियों की चलती नहीं थी, अवस्था कितनी थी, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन उन सबके बीच में मीराबाई ने अपनी बात जो कहनी थी, अपना जो करना था, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या नहीं कर रहा था, उसने अपनी भक्ति को उस स्थान पर रखा जहां भगवान को हमें रखना चाहिए। हमारे लिए हर चीज सेकेंडरी हो जाती है। ब्रज की एक गोपी है जिसकी जो अभी तक जिंदा थी, हमें कथा करते हुए 23-24 वर्ष हुए। जब हमने तीसरी चौथी कथा करी थी तो उनसे हमारी भेंट हुई। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर के पास रहती थी।
छोटी सी कुटिया थी, बाहर एक बरामदा था और अंदर सोती थी। एक उनके पास खड़े हुए भगवान थे, मान के चलो गिरधर गोपाल जैसे भगवान थे। तो उनका क्या नियम था, बड़ा विलक्षण नियम था उनका। वो रोज अपने भगवान की जो पूरी अष्टयाम सेवा करती, जब देखा कि 20 साल से भगवान उनके पास थे तो उन्होंने सोचा भगवान की शादी करा दूं। अब वो भगवान की शादी कराऊं तो किससे कराऊं कि कोई ढंग की बहू दिखे तो करा दूं। अब आप समझिए ब्रज की भाषा है तो ब्रज में आ जाऊंगा, मैं ब्रज की कथा सुना रहा हूं। तो जैसे ही हमारे कन्हैया ने, हमारे ठाकुर ने 20 वर्ष के पास बालक बन के रह लिए, तो रोज जाके कहती लाला चिंता मत कर, तेरी ब्याह की मोई भी चिंता है, तेरा ब्यावला मैं बहुत ढंग से कराऊंगी। और जैसे जैसे लाला उतावल हो रहा हो, सुबह ने वो भाव अंदर डाल दियो कि अब इतने 20 साल से मुझे अकेले खड़ी रख रही है, जरा व्यवस्था कर, मेरे बगल में आके राधा रानी भी खड़ी है जाए। तो ये बेचारी बूढ़ी वाली गोपी रोज जाती लोई बाजार, और लोई बाजार में जो मूर्तिकार है उनकी मूर्ति इनकी दुकानन पे जाके कहती जरा मुझे राधा रानी दिखाइयो। तो दुकानदार दिखा तो एक मूर्ति, कहती ना जाकी ठोड़ी अच्छी ना है, जाकी नाक अच्छी ना है, जरा देख जाके गाल फूल रहे, अरे देख तूने नीचे को हिस्सा बढ़ा दियो। तो हर राधा रानी के मुखारविंद में, मूर्ति में वो कोई ना कोई नोक-झोंक कर ही देती। लेकिन जब रोज जाती तो दुकानदारन ने उसको मूर्ति दिखाना बंद कर दिया। जब मूर्ति दिखाना बंद किया तो उसने कहा अब क्या करें। तो उसने एक दिन जहां खड़ी थी वहां एक साइकिल खड़ी थी, उस साइकिल पे सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था उसके कांच पर। उस कांच से दुकान के अंदर एक पूरी रिफ्लेक्शन अंदर जा रही थी, वो किसी मूर्ति के मुंह पे पड़ रही थी। देखो भगवान को कोई लीला करनी हो तो कैसे करे। और वो मटमैली साड़ी पहनी भाई अंदर घुसी। दुकानदार ने कही अरे मैया कोई मूर्ति ना है, रहने दे, अब सारी मूर्ति मैंने तो दुकान की जो राधा रानी की सब दिखा दी। लेकिन नहीं मानी, अंदर घुसी, जाले लग रहे थे, हाथ घुसाया और उस विग्रह को बाहर निकाला, अपने आंचल से पहुंचकर जैसे ही सामने रखा तो बाने की जे रही मेरी बहू, देख जे रही। तो जैसे ही उस दुकानदार ने देखा अरे ये बंबई के कोई सेठ के लिए बनाई थी, वो आयो ही नहीं लेने, चल भैया तू ले जा, वहां के लिए दूसरी बना दूंगा। तो मां ने अपनी छाती से अपने छोरा की बहू लई और लेके घर पहुंची। बड़े जोरदार तरीका से मां ने ब्यावले की व्यवस्था करी। जब ब्यावला भया सब हुआ तो आप समझना भक्ति का आनंद किस में है, आवश्यक क्या है, समझना क्या है। जो मीराबाई के साथ घट रहा है वो साक्षात घट रहा था। इसका प्रमाण दूंगा मैं आपको कल और परसों में। और उस व्यवस्था को क्योंकि शब्द जो है उस अनुभूति को समझाने के लिए बड़े कम पड़ते हैं। शब्दों की दरिद्रता तब पता चलती है जब भाव की सीमा पर आप प्रविष्ट होते हैं। ये बूढ़ी गोपी ने साक्षात उन भगवान को लिया और अपने घर पहुंच गई, ब्यावला कराया। अब भाई जैसे ही कमरा में, अभी तक कैसे सोती थी कि भैया भगवान तो ऊपर माने मेज पे बैठा के उनकी शैया रख दी और नीचे माने अपना गद्दा बिछा लियो। अब ब्याह हो गया, अब तो बाय लगी कि अरे मैं तो सास हो गई, मैं कैसे अपनी बहू और दूल्हा के मतलब बेटा और बहू के संग वही कमरा में रह सकती हूं। तो उसने उस रिलेशनशिप को स्वीकार करते मानते हुए अपना गद्दा बाहर बरामदे में लगाया और अपने लाला के पास जाके कही लाला देख अब तेरी बहू आ गई है, अब अगर मैं तेरे साथ जा कक्ष में रहूंगी तो मेरी और बहू में कभी ना पटेगी। तो इसलिए एक व्यवस्था करनी चाहिए कि क्या अब तू जाके संग्रह में बाहर सो रही है, पर लाला एक बात सुनियो, तू कोई चीज की जरूरत हो मुझे बताइए। और बहू से क्या कही, देख मैंने अपने लाडले को बड़े प्यार से पालो है, तू जाए परेशान मत करियो। और रात को 2:30 बजे अंदर से आवाज आई, मैया तेरी बहू ने मेरी रजाई खींच ली। जैसे ये आवाज आई ये बूढ़ी मैया जो है वो पागल हो गई। वो इस तरीके से पागल हुई कि उनको लगा क्या करूं भैया। हम जब गर्भगृह खोले अपने मंदिर को, राधा रमन जी को, तो आप समझिए पहले हम गोपाल मंत्र बोले, फिर हम बाकी बात कछु और बोले, फिर हम ताली से भी भगवान को सचेत करें। अरे
साक्षात भाई ब्रह्मांड के नायक अंदर विराजमान है, अपनी प्रिया के संग है, तो पता चले कोई और अवस्था में हो और हम जनजीव वाले, हम कैसे प्रवेश कर सके उनके कक्ष में। तो बार बार उनको सावधान करके हम जब अंदर प्रवेश करें तो वो वही रीति से, माने जैसे ही प्रवेश कियो तो देखो कन्हैया उघड़ो भयो पड़ो भयो, और उगड़े भय कन्हैया को देखकर वैसे ही बाने छूटते गई, अरे कैसी बहू ले आई मैं, सिर्फ सुंदर ही सुंदर है, और देख लो पहली रात में जाने रंग दिखा दिए। लेकिन वहीं बैठकर उसने कपास से लेकर एक और रजाई तैयार करी, और रजाई लेकर फिर करी, लाला देख मैंने जो कह दी, बहुत बुरा मत मानियो, लेकिन मैंने लाला को बड़ा प्यार कियो है। आप समझो वो जो अवस्था है भक्ति की, वो मीरा की साक्षात, ये उसके भाव की भक्ति थी, मीरा की सजीव भक्ति थी। उस भाव पर जब मीरा ने उनको भगवान साक्षात अपने गिरधर गोपाल को बीच में लिया, और बीच में लेकर उसने बैठा लिया, और भोजराज का ये कहना कि टोटका मैं हूं, बींद तो ये है। आप समझो भगवान ने वर भी चुना मीरा के लिए, तो कैसा चुना, जो उनकी उस भक्ति में बाधा उपस्थित कभी भोजराज ने नहीं करी। आप लोगों के मन में भाव आया कि राणा राणा, अरे पति जो राणा था वो तो उसका देवर था, और देवर भी उसकी सौतेली सास का बेटा था, क्योंकि जो उसका सगा भाई था, जो साक्षात उसके साथ संग संग रहता था, उसने तो उसको देखा था। क्योंकि जिस समय पर भोजराज के साथ ब्याह हुआ, अरे ब्याह होने के साथ साथ भाई पड़ला आता है, तो हमारे चित्तौड़ से पड़ला आया, और रात्रि भर व्याकुल हो गई मीराबाई। मीराबाई की व्याकुलता की अवस्था देखो, तो उसने भगवान के सामने जैसे भगवान को बिल्कुल चैलेंज कर दिया हो, अरे तुम कैसे भगवान हो, तुम कैसे मर्द हो, तुम्हारी बींदनी का ब्याह किसी और से हो रहा है, और पड़ला तुम भेजोगे कि कोई और का पड़ला आएगा, और ये तुम्हारी बींदनी किसी और के यहां से भेजे हुए सुहाग के समान को अपने शरीर पर स्पर्श करेगी जो उसके पति ने ना भेजा हो, तो मैं तो वही पहनूंगी जो द्वारका से आएगा। और रात्रि भर वो ऐसी कल्पना में रही, उसने अपनी चंपा आदि सबको बुला, रे तैयारी करो, देखो मेरे लिए बारात लेकर द्वारकानाथ द्वारका से चल पड़े हैं। जब इस भाव की अवस्था हुई तो एक पड़ला द्वारका से आया, एक पड़ला द्वारका से आया, और एक पड़ला चित्तौड़ से आया। चित्तौड़ के पड़ले को मीराबाई ने स्पर्श भी न किया, और दूसरा द्वारका के पड़ले को धारण कर लिया। जब धारण कर कर प्रथम रात्रि में हमारे भोजराज के पास मीरा पहुंची, तो पहुंचते ही मीरा से भोजराज ने एक बात कही कि अंदर जो आपने धारण की है कंठी, हमें बड़ी प्रसन्नता है, कम से कम आपने चित्तौड़ की एक आभूषण को तो धारण किया। तो मीरा ने कहा, ये जो धारण किया है ये तो मेरे द्वारकानाथ ने भेजा है। तो भोजराज को विश्वास न हुआ, उसने कहा द्वारकानाथ ने भेजा है कि हाँ, और हमारे चित्तौड़ का पड़ला कहां है, कि चित्तौड़ का पड़ला तो ए चमेली यहां सारे उन बक्सन को खोल दे जहां से चित्तौड़ का आया था, क्योंकि मेरी मां ने दहेज के सम्मान में उस पड़ले को शामिल कर दिया था, जो आपने भेजा वो वापस चित्तौड़ आ गया। जब उसको खोला भोजराज ने, भोजराज धरती पर बैठ गए, बाएं तरफ था द्वारका का पड़ला जो भेजा कृष्ण ने, और सीधे हाथ पर चित्तौड़ का था। एक एक आभूषण में समानता थी, संख्या में समानता थी, लेकिन दोनों के भाव में, दोनों की जो हीरक अलंकार द्वारका से आए वो इस जगत के न दिखते थे। जब उसने धारण करा हुआ गले वाला देखा कि मेरा हीरक अलंकार कहाँ है जो मैंने आपके लिए प्रथम रात्रि में भेंट के स्वरूप भेजा, तो उसने कहा वो मैंने गिरधर गोपाल को धारण करा दिया। वो गले से निकाल कर मीराबाई उस अलंकार को लाई और वो भी भोजराज के हाथ में रख दिया। आप कल्पना करना विवाह कैसा रहा होगा, मीरा की भक्ति कैसी रही होगी, भोज कैसे रहे होंगे कि वो महल का एक तरीके से जैसे बंटवारा सा हो गया। अरे मेद पाट के राजकुमार का इतना विलक्षण, इतना चमचमाता महल, उसमें मीरा का गृह प्रवेश हुआ। उस मीरा के गृह प्रवेश में मेद पाट का राजकुमार पीछे और मीरा के गोदी में गिरधर गोपाल के साथ गृह प्रवेश हुआ। और उस गृह प्रवेश के पश्चात
एक एक पल और एक एक क्षण के लिए मीरा ने उस भाव का दर्शन किया। जब कक्ष में पहुंचे तो अपनी प्रतिज्ञा का मान रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं मीरा के साथ एक कक्ष में तो रहूंगा, लेकिन मेरा हिस्सा इधर की तरफ है। मीरा अपने भगवान के साथ रहेगी, बीच में एक पर्दा था केवल। मीरा उन्हें सखा कहकर संबोधन करती और रात्रि में वो कहते कि क्या कभी कृष्ण आए हैं? तो आज रात्रि में जब प्रथम रात्रि हुई और मीरा ने कातर भाव से अपने कृष्ण को निमंत्रण दिया, आज पहली बार ऐसा घटा कि भोजराज ने क्या सुना कि रात्रि में मीरा ने कृष्ण से कहा, देखो आप इतनी हमारे बालों के साथ, केशों के साथ इतना खेलते हो कि आज हमारे केश हमारे कुंडल और नथ में फंस गए हैं। चलो अब आप हमारे सामने बैठो श्याम सुंदर, और हमारे नख से और हमारे कुंडलों से हमारे केशों को जो उलझ गए हैं उनको सुलझाओ। और सोचो बगल में भोजराज सो रहे हैं। यहाँ भाव की अवस्था में उनकी मीरा अपने कृष्ण के साथ कर रही हैं। वो बाहर बैठकर हाथ में माला लेते हैं और स्वयं लेकर कृष्ण 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 नाम करते हैं। ऐसा अद्भुत विलक्षण उनका विवाह का प्रसंग प्रारंभ होता है। इसको कल आगे लेकर और परसों जब हम मीराबाई छोड़ देंगी और वृंदावन जाएंगी और वृंदावन से द्वारका जाएंगी, इस चर्चा को करेंगे। ये 3 भागों में होगा। मीराबाई का ब्याह कैसे हुआ, कुछ पार्ट्स हैं जो बीच बीच में हमें छोड़ने भी पड़े, क्योंकि कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पर क्या अवस्था होगी। आज तो फिर भी मैंने अपने आप को बहुत संभाल कर इस बात को कही है, लेकिन कल उस भाव से प्रिपेयर्ड होके आइए कि भक्ति जो है वो रंग चढ़ने लगे। रंग चढ़ेगी तो आनंद आएगा। मज़ा तब है जब मीरा भीतर नाचने लग जाए। 21 दिन से मेरे साथ नाच रही थी, तो आज कोशिश करी कि थोड़ी आपके साथ प्रारंभ हो। जय जय श्री राधे, हरि बोल। I can actually see few things here. It's really cold outside, and a lot of people have been feeling that this thing. अब मैंने कहा हमारी विनीता जी से कल कि सर्दी तो मैं ही वृंदावन से लेके आया हूँ, क्योंकि परसों तक तो थी नहीं। लेकिन एक व्यवस्था है, आपको हम बतावें कि जरा वो कहते हैं ना, उपासना करो, उपासना करो, उपासना करो। उपासना का मतलब है उप आसन, थोड़ा सा सरको और थोड़े और समीप बैठ जाओ, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा लगती है तो हम आपस में एक दूसरे की उष्मा से, और यहाँ उष्मा जो है वो भक्ति है, वो भक्ति के भाव से गर्माहट ले लें। इसी भाव से आप कथा श्रवण करें। राधे। चलो।